نگینہ کی آج شادی کی رات تھی۔ وہ سج دھج کر بیڈ پر سرخ چوڑی میں لپٹی بیٹھی تھی، بے چینی سے اپنے ہمسفر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی طرح کے خوف تھے۔ نگینہ کالج کی طالبہ تھی اور ارشد سے اس کی ملاقات بس اسٹاپ پر ہوتی تھی۔ ارشد کالے رنگ کی اینک لگائے اور پینٹ شرٹ میں ملبوس نگینہ کو تکتا رہتا تھا۔ شروع میں نگینہ نے ارشد پر دھیان نہ دیا، مگر جب وہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں نگینہ کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ نگینہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی، پیار محبت کی باتوں سے بہت دور رہتی تھی۔ نگینہ کی نظر میں محبت صرف شادی کے بعد ہوتی تھی۔ نگینہ خود میں رہنے والی لڑکیوں میں سے تھی، کسی کی بات کو دل پر نہ لیتی تھی اور لڑائی کے بعد دل صاف کر لیتی۔ ایک بار کوئی معافی مانگ لیتا تو اسی وقت معاف کر دیتی۔ نگینہ کے خواب بہت بڑے تھے، مگر گھر کے حالات کی وجہ سے اس کے خواب ادھورے رہ گئے۔ وہ بس ان خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ نگینہ کی عمر لگ بھگ 23 سے 24 کے قریب تھی۔ نگینہ کی آنکھیں نیلی گہری تھیں اور ہونٹ گلابی تھے۔ خود پہ زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی، مگر حسن نگینہ میں بلا کر تھا، جو اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ارشد مسلسل 2 ماہ سے نگینہ کے پیچھے تھا۔ نگینہ کو احساس اس بات کا تب ہوا جب وہ ارشد پر نگاہ ڈالتی تو وہ اسے ہی دیکھتا رہتا۔ ایک بار خیال آیا کیوں نہ اس کی شکایت کی جائے، مگر پھر بوڑھے والد کا خیال آیا کہ بات آگے بڑھ جائے گی۔ نگینہ کے والد محنت مزدوری کرتا تھا۔ نگینہ کے 2 بھائی تھے، جس میں سے ایک نکما تھا اور دوسرا چھوٹا تھا، جو میٹرک میں پڑھائی کر رہا تھا۔ والد اکثر بیمار رہتے تھے۔ نگینہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی، مگر گھر کا خرچہ کچھ والد اور باقی نگینہ سنبھال لیتی تھی۔ نگینہ کو ناولز کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اب ہر روز میرے راستے میں کیوں کھڑے ہوتے ہو مسٹر؟ میں مسلسل آپ کو نوٹ کر رہی ہوں۔ آخر کار آج نگینہ نے ارشد سے ہمت کر کے سوال کر ہی دیا۔ نگینہ کا چہرہ چونکہ دوسری طرف تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بات بنے، اس لیے نگینہ دوسری طرف چہرہ کر کے بات کر رہی تھی۔ اب اپنی نہیں، کم از کم میری عزت کا تو خیال کرے۔ نگینہ تھوڑی سی نروس بھی ہو رہی تھی۔ اس نے انجان شخص سے پہلی بار بات کی تھی۔ آپ کی عزت کے لیے ہی تو کھڑا ہوں۔ اکثر آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میرے ساتھ جو لڑکے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ آپ کے جسم پر ہوتی ہے، وہ آپ کو شیطانی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کی سیفٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تاکہ اوباش لڑکے آپ کے بارے میں غلط بات کر رہے تھے۔ دیکھیے مسٹر، میرے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے، مجھے پرواہ نہیں، اور میری عزت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ذات اگر نہ چاہے تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور برائے مہربانی آئندہ کے بعد میرے راستے میں مت کھڑے ہونا۔ دوسری سائیڈ سے گاڑی نگینہ کی متوجہ کیا اور نگینہ گاڑی پر سوار ہو کر چلی گئی۔ ارشد نگینہ کو ہی دیکھتا ہی رہ گیا۔ نگینہ رات کو بستر پر لیٹی تو اسے دن والا خیال آیا۔ نگینہ نے اپنا دماغ جھٹک دیا اور سو گئی۔ چونکہ اگلے دن چھٹی تھی، سارا دن کام کاج کی نگینہ نے شدید تھک گئی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ نگینہ آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر موسم نے انگڑائی لی اور آسمان پر بادل چھانے لگے۔ ٹھنڈی ہوائیں جب چلنے لگی تو نگینہ گھر کی چھت پر چلی گئی اور موسم کی انگڑائی کا بھرپور فائدہ اٹھا کر آنکھیں بند کر کے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ نگینہ 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 کی سماعتوں نے اپنے نام کی صدا سنی اور آنکھیں کھول کر آگے پیچھے دیکھتی ہی رہی، مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ آواز اسی بس اسٹاپ والے لڑکے کی ہے۔ بیچارے کو میں نے خواہ مخواہ میں ہی سنا دی۔ نہ جانے کون تھا، اس کے دل میں نہ جانے کیوں دل کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکے سے معافی مانگ لے۔ نگینہ نے فیصلہ کر لیا کہ کل اس لڑکے سے معافی مانگے گی۔ اگلے دن بس اسٹاپ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود بھی وہ انجان شخص کہیں نظر نہ آیا۔ البتہ کچھ فقرے سننے کو ضرور ملے۔ پہلے تو نگینہ کسی کے کہے ہوئے فقروں پر غور نہ کرتی تھی، مگر آج اس نے غور کیا۔ نگینہ نے دل میں ہی سوچا کہ وہ لڑکا درست کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کون تھا، کدھر سے آیا تھا۔ سلسلہ کچھ دن یوں ہی چلتا رہا۔ نگینہ بھی اس بات کو بھولتی جا رہی تھی۔ نگینہ کو کتابوں میں بہت دلچسپی تھی۔ نگینہ کالج کے قریب ہی ایک پرائیویٹ لائبریری سے کتابیں لیا کرتی تھی اور پڑھ کر واپس کر دیا کرتی تھی۔ آج بھی نگینہ کتاب لینے آئی۔ کتاب ڈھونڈتے ہوئے اس کی نظر اس شخص پر پڑی۔ وہ وہی شخص تھا
जो बस स्टॉप पर मिला करता था। नगीना ने अरशद को देख लिया था। अरशद भी किताबें तलाश करने में लगा हुआ था। अब नगीना के पास मौका था कि अरशद से बात कर ले। इसी गर्ज से नगीना ने अरशद के सामने इसी उम्मीद से जाकर खड़ी हुई कि वो इसे बुलाए। नगीना अपना भी भरम रखना चाहती थी। अरशद की नज़र नगीना पर पड़ी। अरशद चुप हो गया और बाहर की तरफ चल दिया। इसी असना पर नगीना ने भी खुद की किताबें ली और बाहर चली गई। अरशद शायद नगीना का ही इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों सड़क पर एक दूसरे को तकते रहे और नज़र चुरा लेते। अरशद हिम्मत करके नगीना को सलाम किया और आने का मकसद बयान किया। आप यहाँ क्या कर रही थी? मैं आपको भी किताबें पढ़ने का शौक़ है। नगीना ने नॉर्मल अंदाज में अरशद को जवाब दिया। गर्मी बहुत थी। आए मैं आपको अपनी गाड़ी में आपके घर ड्रॉप कर लेता हूँ। इधर बात करना मुनासिब नहीं। अरशद ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए नगीना को मुखातिब किया। नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी। अरे ऐसे कैसे, मैं खुद आपको बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। घबराए मत, मुझे अपना ही समझिए। नगीना अब कुछ सोच रही थी। अगले ही लम्हे नगीना राज़ी हो गई और फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई। आपके पास अपनी गाड़ी है तो फिर आप बस स्टॉप पर क्यों खड़ी होते हैं? नगीना ने अरशद से सवाल किया। वो आपके लिए खड़ा होता हूँ क्योंकि आप मुझे अच्छी लगती है। अरशद वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। झट से इनकार कर जाना और पसंद करने लगा। आप पागल तो नहीं हो गए हैं? आपने मुझे न समझा है और ना ही जाना है, पसंद करने लगे। नगीना का लहजा थोड़ा सा सख्त हो गया। मोहतरमा, दिल किसी का मुलाजिम तो नहीं जो पूछ कर किसी को पसंद करने लगे। फिर दोनों जानिब खामोशी छा गई। अब से मैंने माफ़ी मांगनी थी मगर आप इस दिन के बाद नज़र नहीं आए। नगीना ने खामोशी को तोड़ते हुए बात को आगे बढ़ाया। माफ़ी एक शर्त पर मिल सकती है, ये अरशद ने शरारती अंदाज में कहा। नगीना ने कहा, क्या शर्त है? अरशद का मुंह तकते हुए पूछा। बस एक कप चाय से माफ़ी मिल सकती है। नहीं, कोई चाय वाय नहीं। ठीक है, फिर कोई माफ़ी तस्लीम नहीं की जाएगी आपकी। अरशद ने नगीना से बोला। अच्छा ठीक है। नगीना चाय के लिए राज़ी हो गई। अरशद ने करीब ही एक 5 स्टार होटल पे कार को पार्क किया और दोनों अंदर चले गए। नगीना आज से पहले इतना शानदार होटल कभी नहीं देखा था। साफ़ सुथरा माहौल और एसियों की ठंडी हवा जैसे नगीना पर पेरिस पहुंच गई हो। मगर नगीना थोड़ा सा घबरा भी रही थी। पहली बार किसी अजनबी के साथ, और ये भी डर था कि कोई इसे देख ना ले। लेकिन नगीना को ख्याल आया कि इसके ख़ानदान वाले इस होटल के पास से भी नहीं गुजरेंगे। आप मुझे बहुत पसंद हो, मुझसे शादी करोगी? अरशद ने बैठे हुए चाय का आर्डर किया और साथ ही अपनी बात भी कह दी। मिस्टर, क्या बात कर रहे हो? मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ। जान पहचान नहीं हुई और आगे लाइन मारने। अरे नहीं मोहतरमा, लाइन जिन्हें मारी जाती हैं इन्हें मैं इतनी इज़्ज़त नहीं देता हूँ। बाय द वे नगीना, आप जैसी नेक लड़की मैंने कभी नहीं देखी। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? नगीना ने हैरान होते हुए अरशद से पूछा। इन खूबसूरत हाथों में आपने अपना प्यारा सा नाम लिखा हुआ है। वैसे मेरा नाम अरशद है और मेरा अपना बिजनेस है। नगीना हाथ में चाय पकड़ते हुए अरशद को सुन रही थी। घर का सोच रही थी कि देर हो रही है, आप बहुत कम बोलती हैं। अरशद की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। नगीना ने अपना निकाब उतार लिया। खुदा की शान, अरशद के मुंह से यकदम खुदावंद करीम की तारीफ सुनने को मिली। नगीना ने अरशद से जवाब तलब किया। कुछ नहीं, वो अल्लाह पाक की शान बयान की है। आप मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। लड़की को इसी की तारीफ सब लफ्ज़ों में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे अब चलना चाहिए। नगीना ने अरशद की बात को अनसुना करके कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अरशद भी नगीना के साथ चल पड़ा। अरशद बात को बढ़ाना चाहता था और नगीना भी कुछ ऐसा ही चाहती थी, मगर शर्म व हया का पैकर ही बनी बैठी थी। इसे अरशद पहले नज़र में ही पसंद आ गया था, लेकिन वो इसे अपनी ज़बान से इजहार ना करना चाहती थी। ये ले मेरा विजिटिंग कार्ड, इस पे मेरा नंबर एड्रेस है। कोई भी काम हो तो मुझे लाजमी बता देना। बस स्टॉप आ चुका था। नगीना ने कुछ कहे बगैर ही कार्ड को पर्स में रखा और उतर गई। अरशद भी चला गया। नगीना की ये रात बहुत मुश्किल से गुजरी थी। न जाने क्यों बेचैनी थी। क्या जादू कर दिया था अरशद ने? मुझे सुकून क्यों नहीं आ रहा है? क्यों मेरा दिल बेचैन सा हो रहा है एक नामुहर्रम के लिए? क्यों मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ? अनगिनत सवालात नगीना खुद से पूछ रही थी। नगीना की हिम्मत न हो रही थी कि वह अरशद से कैसे बात करे। घर में बस एक मोबाइल था जो नगीना बहुत कम इस्तेमाल करती थी। नगीना ने
ہاتھ میں موبائل پکڑا اور کارڈ پر درج کیا نمبر ملا دیا۔ کال ملاتے ہی بیل کی پہلی گھنٹی بجی اور نگینہ نے کال کاٹ دی۔ اس نے ہمت پھر سے کی اور اب کی بار ارشد کی کال آ گئی، لیکن نگینہ کال نہ اٹھا سکتی تھی اور کال کٹ گئی۔ اب کی بار نگینہ نے پھر سے کال ملائی۔ اس بار بنا دیر کیے ہی دوسری طرف سے اٹینڈ ہو چکی تھی۔ ہیلو، کون؟ ہیلو ہیلو۔ نگینہ کو ایسی چپ لگی کہ ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکلا اور موبائل بند کر کے سو گئی۔ صبح جاگی، سب سے پہلے خیال آیا کہ ارشد کا، اور موبائل آن کرنے پر میسج پڑھ کر خوشی اور حیرانگی بھی ہوئی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نگینہ ہو، میری آواز اتنی بھی بری نہیں کہ آپ بولی تک نہیں۔ میں 8 بجے تک آپ کا بس اسٹاپ پر انتظار کروں گا۔ نگینہ آج وقت سے پہلے ہی بس اسٹاپ پر پہنچ گئی تھی۔ ارشد دیر سے آیا تھا۔ نگینہ غصے کی حالت میں تھی لیکن کوئی بات نہیں کی تھی، سیدھا ارشد کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارشد نے رومانٹک سانگ پلے کیا، محسوس ہونے لگا۔ نگینہ نے گانا بند کر لیا اور دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ اب نگینہ خود کو پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط سمجھ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں بھی کوئی خیال رکھنے والا آ رہا تھا۔ نگینہ کی عادت تھی کہ زیادہ بولتی نہیں تھی، مگر ارشد کے پاس نہ جانے کدھر کدھر سے باتیں آ جاتی تھیں۔ نگینہ کو خوب ہنساتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نگینہ، جو کسی کو بھی بھاؤ تک نہ ڈالتی تھی، مگر ارشد کے سامنے تمام ہتھیار ڈال چکی تھی۔ آپ کو اپنا آفس دکھاتا ہوں، ارشد نے سوالیہ نظروں سے نگینہ سے سوال کیا۔ نہیں، کالج سے دیر ہو رہی ہے اور میں کیوں دیکھوں؟ آپ میرے کیا لگتے ہو؟ مجھے آپ کے کالج جلدی پہنچنا تھا، تب ہی آپ کی گاڑی میں بیٹھ گئی، ورنہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ ارشد نگینہ کی معصوم باتیں سن کر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا اور لبوں پہ مسکراہٹ لا رہا تھا۔ اب مذاق سمجھ رہی ہیں؟ نگینہ ارشد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میری کیا مجال آپ کا مذاق بناؤں؟ وہ تو میں آپ کی معصومانہ باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ اچھا بس کرے، کالج آ گیا ہے، روکے گاڑی۔ ارشد نے بلا تاخیر گاڑی روک دی اور اگلی بار ملنے کا پوچھا تو نگینہ نے کہا کہ روز ملنا ضروری نہیں، ویسے بھی روز ملنے سے عزت کم ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی میری امی کہتی ہے کہ روز روز ملنے سے عزت کم ہو جاتی ہے، اور گاڑی سے اتر کر کالج کی طرف چل گئی۔ ملاقاتوں کا سلسلہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اب نگینہ ماڈرن بنتی جا رہی تھی۔ بلیک ٹائٹ جینز اور شارٹ قمیض میں وہ کسی ہیروئن سے کم نہیں تھی۔ ارشد نے اسے مالی سپورٹ کرتا تھا۔ اب گھر کے حالات بہتر سے بہتر ہو رہے تھے۔ نگینہ کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور ارشد کے آفس میں جاب بھی کرتی تھی۔ اب ارشد جدھر بھی میٹنگ میں جاتا تھا، نگینہ کو بطور اسسٹنٹ ساتھ ضرور رکھتا تھا۔ رات کو لیٹ آنا نگینہ کی روٹین بن گئی تھی۔ نگینہ اپنے والدین سے ارشد کو ملوا چکی تھی۔ ارشد نے بھی نگینہ کے والدین کو تسلی دے کر ان کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ نگینہ کی قابلیت کی وجہ سے ارشد کو کافی فائدہ بھی ہوا تھا۔ ارشد اگر مصروف ہوتا تو نگینہ ہی کلائنٹ کو ڈیل کیا کرتی تھی۔ اب ارشد نگینہ کو اپنی وائف کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ارشد نگینہ کی ہر وقت تعریفوں کے پل باندھا کرتا تھا۔ نگینہ کے والدین اکثر فکر ہو جاتی تھی۔ نگینہ کے والدین کو بھروسہ مکمل دلوا چکی تھی۔ اب روز کا معمول تھا کہ ارشد نگینہ کو ہر اس جگہ پر لے جاتا تھا جدھر اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ارشد نے اسے اپنی والدہ سے بھی نگینہ کو ملوا دیا تھا۔ نگینہ خود سے زیادہ اب ارشد پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ اب ہمیں شادی کی بات آگے بڑھا لینی چاہیے، نگینہ نے ارشد سے مخاطب تھی۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اچھا، میں آج ہی اپنی امی سے بات کرتا ہوں۔ دونوں بہت زیادہ کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ اچانک ارشد کو ایک کام یاد آ گیا۔ نگینہ، چلو چلتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے ارشد نگینہ کی بات کو کاٹا۔ نگینہ بھی بنا کوئی سوال کیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارشد بار بار پیچھے مڑ کر کسی کو تک رہا تھا۔ ارشد نگینہ کو گھر پر ڈراپ کرنے کے بعد اپنی پرانی محبت کو سوچنے لگا کہ وہ اب کسی اور کی لڑکے کے ساتھ اسی ہوٹل پہ آئی ہوئی تھی۔ مرد اگر کسی بھی عورت کو چھوڑ دے تب بھی مرد کے دل میں جلن ضرور ہوتی ہے۔ ارشد کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، مگر ارشد کی ایک حرکت نے اس کی پہلی محبت کو دور کر دیا تھا۔ ارشد اسے بھی نگینہ کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، شاید کہ نگینہ سے کم کرتا تھا۔ ارشد کا وہ رات نہ بھول پائے جس رات اس نے نشے کی حالت میں عریشہ کو اپنے گھر بلایا۔ عریشہ نے یونیورسٹی میں پیپرز کی تیاری کا بہانہ کر کے ارشد کے گھر چلی گئی تھی۔ ارشد نے اس کی عزت کو اس طرح رات کو داغ لگا دیا تھا۔ ارشد کی وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ وہ تو عریش کو اپنی ماں سے ملوانے اور 2 گھنٹے میں واپس بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، مگر نہ تو ارشد نے اسے واپس جانے دیا اور نہ ہی ارشد کی والدہ گھر پر تھی۔ ارشد نے بڑی بے رحمی سے اور نشے کی حالت میں عریشہ کو ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ اب عریشہ خود کو کوس رہی تھی۔ ارشد نے نیم برہنہ
हालत में अरीशा को छोड़कर बाहर जा चुका था। अरीशा अरशद से भीख मांगती रही, मगर अरशद को एक लम्हे के लिए भी ख्याल न आया। अरीशा भी एक मिडिल क्लास तबके से थी। अरीशा अरशद का ये दूसरा रूप था, मगर इसके बारे में नगीना को एक पल के लिए भी शक न हुआ था। अरशद कैसा है? नगीना चालाक नहीं थी और अरशद को भी ऐसी ही लड़की की तलाश थी। अब नगीना के वालिदैन नगीना की शादी के लिए बात चला रहे थे। नगीना सिर्फ अरशद की ही होना चाहती थी। नगीना घर में खुद बात न कर सकती थी। बेटा, हमें तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। नगीना के वालिद ने नगीना से कई दिन से बात करना चाहता था, मगर वक्त न मिलने की वजह से वो बात न कर पाते थे। बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो हमारी बेटी से हमें दूर कर दे। नगीना गर्दन झुकाए वालिद की बात सुन रही थी और बाप की आंखों में आंसू भी साफ नज़र आ रहे थे। बाबा, आप रोए नहीं। इसके वालिद की आवाज़ में नरमी, इस कदर नरमी और जज्बात शामिल थे। नगीना इन्हें गले लगाकर चुप करवाते हुए खुद भी रो पड़ी। बाबा, आपको पता है आपकी बेटी बहुत काम करती है और बहुत मेहनत करने वाली है। हाँ, हमारी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। नगीना की वालिदा ने नगीना को गले लगाया। अब तीनों लोग बहुत खुश थे और इसके वालिद ने नगीना से शादी के हवाले से भी बात कर दी थी। बाबा, बस 6 महीने मज़ीद मुझे काम नौकरी करने दे, इसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। इसी असना में नगीना के वालिद ने इसका माथा चूम लिया और बेफिक्र होकर सो मगर नगीना अरशद के बारे में सोच रही थी। इसके दिल में कई तरह के वहम जन्म ले रहे थे। कहीं अरशद शादी से इनकार न कर दे। नगीना को समझ नहीं आ रही थी कि वो अरशद से बात करे, नगीना का भरम भी रह जाए और बात अरशद तक भी पहुंच जाए। ये काम थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, मगर नामुमकिन नहीं था। नगीना को अरशद से इश्क हो चुका था। वो अपनी ज़बान से इजहार नहीं कर सकती थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत में शर्म हया का मुजस्मा बनाकर धरती पर भेजा है। औरत में अल्लाह पाक ने बहुत सी खूबियों से नवाजा है और उसमें एक ही खूबी ये है कि मगर हमारा माशरा औरत को बहुत से काम भी करने पर मजबूर कर देता है। अब नगीना अरशद से बात भी करना चाहती थी। अरशद, मुझे आपसे एक बात करनी है। गाड़ी में बैठी नगीना ने अरशद से बात करना शुरू कर दी। रात में बाबा आए थे और मेरी अम्मी की और मेरी शादी की बात कर रहे थे। आप क्या तोहफ़ा देंगे मुझे मेरी शादी पर? अरशद भी बात समझ रहा था और नगीना कहना चाहती थी। अरशद को शरारत सूझी। हाँ, मैं तुम्हें अच्छा सा तोहफ़ा दे दूँगा। अब शादी के कार्ड मुझे लाजमी पहुँचा देना। अरशद, मैं क्या कहना चाहती हूँ और आपको मजाक करने की है? अरे बाबा, मैं अम्मी से बात कर ली है। कल तुम मेरे साथ मेरे घर चलना, फिर हम रिश्ता लेने अपनी वालदा को भेज दूँगा तुम्हारे घर। ठीक है, तुम कल ऑफिस से छुट्टी के बाद मेरे साथ चलना और घर पर बता देना कि मीटिंग में जाना है, देर हो जाएगी। अरशद, आप सच कह रहे हैं? नगीना सवालिया नज़रों से अरशद की तरफ देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। नगीना अब मज़ीद खुश हो गई थी, क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा ही अब मिलने जा रहा है। नगीना मुकम्मल तौर पर बदल गई थी, मगर शराफत और शर्म व हया पहले की तरह ही थी। नगीना ने घर जाकर मीटिंग का बता दिया था और अगले ही दिन ब्लैक जीन्स और ब्लू कलर की शर्ट पहनकर अरशद के साथ चल दी थी। नगीना आज अपनी सास से मिलने वाली थी और परेशान भी थी, न जाने इसकी सास कैसी होगी। इधर अरशद अपनी वालदा को सारी हकीकत बयान कर चुका था, अम्मी को राज़ी भी कर चुका था। नगीना को वो वक्त याद आ रहा था जब वो कॉलेज में फ़ीस भरने के लिए अपने दोस्तों से उधार मांगती थी। आज नगीना दूसरों की हर तरह की मदद भी कर रही थी। नगीना बेसहारा लोगों को सहारा देना चाहती थी और एक ट्रस्ट बनाना भी इसका ख्वाब था, मगर इस ख्वाब तक पहुंचने के लिए इसे मज़ीद मेहनत की ज़रूरत थी। अरशद नगीना को अच्छा खासा पैसा मिल चुका था और सेविंग भी कर चुकी थी, मगर नगीना एक लम्हा भी गरूर ना था। आया नगीना मोहब्बत को इबादत का दर्जा दे चुकी थी और वो ऐसी ही मोहब्बत की कायल थी जिसमें मुहर्रम सिर्फ इससे पहली रात को ही छू सके। इंसान वही कुछ हासिल भी कर लेता है जिसका वो गुमान करता है, और नगीना का भी यही गुमान था जो नगीना को मिल रहा था। इंसान की ज़िंदगी में अक्सर ऐसे हालात आ जाते हैं जिसका इन्हें वहमो गुमान भी नहीं होता, मगर कामयाब वही होता है जो इन इम्तिहानात को बर्दाश्त करे और अबूर कर ले। नगीना को अपनी सास से मिलने की खुशी के साथ साथ डर भी लग रहा था। अरे यार, डरने की ज़रूरत नहीं, मेरी वालदा है। ये कहकर अरशद ने नगीना को रिलैक्स किया और ऑफिस से निकल पड़े। अरशद, आओ कहीं घूमने चले। पहली बार अरशद नगीना ने खुद को कहा था कि अरशद ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और दोनों गाड़ी पर बैठ गए, लॉन्ग ड्राइव पर चले गए। अरशद गाड़ी चलाते हुए नगीना का हाथ थामने की कोशिश
نہیں کی۔ ارشد بھی ایسا ویسا کچھ مت کرے، میں آپ کو محرم بننے کے بعد ہی آپ کو اپنے حوالے کر دوں گی، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گی، مگر ابھی یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ارشد وقتی طور پر غصہ ضرور آیا مگر بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ اب دونوں پارک میں جا کر بیٹھے اور کافی بیٹھنے کے بعد نگینہ نے جب اپنی گھڑی دیکھی تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ نگینہ دیکھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اٹھے اب چلتے ہیں۔ نگینہ نے پریشان ہوتے ہوئے ارشد سے کہا، اچھا بابا، ماما بھی انتظار کر رہی ہوگی۔ نگینہ نے آج ارشد سے بہت ساری باتیں کی اور دل کھول دیا اور سب کچھ ارشد کو بتا دیا۔ مرد کو جب لڑکی کی حقیقت کا پتہ لگ جائے تو مردوں کے لیے عورت کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، جو نہ بھی بتانے والی باتیں ہو محبت میں وہ بھی بتا دیتی ہے، خود کو قید کر لیا جاتا ہے۔ مرد کی فطرت کیا ہے کہ مرد اس عورت کے زیادہ قریب جاتا ہے جس کو وہ حاصل نہ کر پا رہا ہو۔ ارشد کتنا سفر رہ گیا؟ گاڑی میں بیٹھی نگینہ ارشد سے پوچھا، بس آدھا گھنٹہ مزید، تم دیکھ رہی ہو ٹریفک کتنی جام ہے۔ ارشد، یہ فٹ پاتھ پر سونے والے بچوں کا کوئی نہیں ہوتا جو انہیں چھت عطا کر دے؟ نگینہ جو باہر فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے لوگوں اور بچوں کو دیکھ رہی تھی، پریشانی کے عالم میں ارشد سے پوچھ رہی تھی، ارے میری جان چھوڑو، تمہیں کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ہمیں تو خود سے غرض ہونی چاہیے۔ لو بس اسی اگلی گلی میں میرا مطلب ہمارا گھر ہے۔ ارشد گاڑی کا ہارن بجایا اور اندر سے چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ ارشد، لو گھر آ گیا۔ رشید میڈم کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولو۔ رشید بہت ادب سے نگینہ کو سلام کرنے کے بعد دروازہ کھولتا ہوا نگینہ جب اپنے پاؤں زمین پر رکھتی ہے اور نظر اٹھا کر ادھر ادھر کا جائزہ لینا شروع کر دیتی ہے، نگینہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اتنا شاندار محل، اس نے دل میں کہا اور آہستہ آہستہ اندر قدم بڑھانے کی لگی اور ایک مین دروازہ جو کہ خاصا لکڑی کا بنا ہوا تھا لب سڑک آس پاس دیکھا تو گھاس پر جھولوں کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا اور اسی کے ساتھ ہی پودوں کی کیاریاں لگی ہوئی تھی جس کی مہک سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے نگینہ آنکھیں بند کی اور مہک کو محسوس کرنے لگی۔ محل ململ کے طور پر ٹائلوں والا تھا۔ نگینہ، کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ سب میری والدہ کی خواہش سے ہوا ہے۔ انہیں پھولوں سے خاصی دلچسپی ہے، وہ روز خود پودوں کو پانی دیتی ہے۔ اور یہ ہے ہمارا ملازم رشید۔ اس نے رشید کا تعارف کرواتے ہوئے رشید کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہمارے پاس پچھلے 30 سالوں سے ہے۔ اس گھر میں میری والدہ کا بہت خیال رکھتا ہے۔ رشید ہاتھ میں ہاتھ باندھے ہوئے سر جھکا کر کھڑا تھا۔ صاحب جی، امی کی طبیعت خراب ہے، وہ دوا بھی نہیں کھا رہی ہے۔ رشید نے ارشد کو اس کی ماں کی طبیعت کے بارے میں آگاہ کیا۔ تم نے فون کیوں نہیں کیا؟ ارشد اب رشید پر غصہ ہو رہا تھا۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ نے منع کیا تھا۔ چلو جاؤ یہاں سے اب۔ نگینہ نے غور کرنا شروع کیا اور اس بات پر پہنچ گئی کہ ارشد کو کسی غریب کا احساس بھی نہیں تھا اور رشید کو گھر میں نوکری دینا اس کی مجبوری تھی کیونکہ ارشد کے والد نے اپنی زندگی میں ملازمت دی تھی۔ ارشد اسے نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ اچھا بات سنو رشید۔ ارشد نے رشید کو جاتے ہوئے روکا۔ جی صاحب جی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ایک ملازمہ کا بندوبست کرو۔ پہلے والی تو بھاگ گئی ہے اپنے یار کے ساتھ۔ جی صاحب جی، میں بات کی ہے، میری بیٹی ہے صاحب، وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، آپ اسے ہی نوکری دے دیں۔ رشید اس قدر مجبور تھا کہ اپنی بیٹی کی بھی ملازمت کے لیے مان گیا تھا۔ اب وہ جوان بھی ہو چکی ہے اور اس کی شادی کی بات رشید کو فکر مند کر رہی تھی۔ رشید کا ایک ہی بیٹا تھا جس کو نشے کی لت پڑ چکی تھی۔ رشید کی بیوی جو اب بیماری کی حالت میں تھی۔ گھر میں فاقوں کی کیفیت تھی۔ رشید کے بیٹے نے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے گھر کی قیمتی چیزیں فروخت کر چکا تھا۔ اب رشید کے پاس نہ کوئی سرمایہ تھا اور نہ ہی کوئی آمدنی کا ذریعہ تھا، بس ایک یہی نوکری تھی جو کہ پچھلے 30 برسوں سے کر رہا تھا۔ نہایت مجبور ہو کر اس نے اپنی بیٹی آمنہ کو آگے بڑھانے کا سوچ رہا تھا کیونکہ آمنہ کو پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ آمنہ کی کئی رشتے بھی آئے مگر ہر رشتہ 40 کے لگ بھگ آتا تھا۔ اگر کوئی جوان رشتہ آ بھی جاتا تو وہ انکار کر دیتا اس کے بیٹے کی وجہ سے۔ کوئی بھی اس گھر میں شادی کے لیے راضی نہ ہوتا۔ اچھا تو تم ایک کام کرنا، کل اپنی بیٹی کو آفس ہی لے آنا، نگینہ سے ملوا دینا۔ جی صاحب جی، ٹھیک ہے۔
साहब जी कुछ पैसे चाहिए थे। रशीद ने डरते हुए अरशद से आज़ाना अंदाज में सवाल किया। रशीद अभी परसों ही तो तुम्हें पैसे दिए थे, अब फिर से? चलो जाओ, बाद में ले लेना। अरशद का ये रवैया नगीना को हैरान कर रहा था, क्योंकि अरशद ऑफिस और बाहर से सबसे हंसकर और खुश मिजाजी से बात करता था, मगर घर के और ऑफिस के नौकरों से बहुत गुरूर से बात करता था। नगीना के घर अंदर कदम रखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आज से पहले इतना शानदार महल नुमा घर आज तक नहीं देखा था। नगीना के दाईं साइड पर सीढ़ियाँ जो कि ऊपर की पोर्शन की तरफ जाती थी, और सामने कीमती सोफ़े, टीवी, लाउंज में एलईडी लगी हुई थी। घर में 8 से 10 और ऊपर वाले पोर्शन में भी 8 से 10 कमरे थे। ये घर तकरीबन 50 मरले का होगा, जिसकी डेकोरेशन शायद शाहिदा ने की थी। इसने ख्वाब में भी ऐसा ना देखा होगा। हर कमरे में एसी और टाइल्स लगी हुई थी। तुम इधर बैठो, मैं अपनी वालदा को बताकर आता हूँ। अरशद नगीना को सोफ़ा पर बैठने का बोला और ख़ुद कमरे में चला गया। कुछ देर बाद आया और नगीना को अम्मी से मिलवाया। मामा, ये नगीना है जिनका मैंने जिक्र किया था। अरशद की वालदा ने एक नज़र देखा और कुछ बोले बगैर ही आंखें बंद की। नगीना को महसूस हुआ जैसे इसकी माँ राज़ी नहीं। अरशद की माँ अरशद से ज़्यादा मगरूर औरत थी, मगर अरशद भी इसका बेटा था जो अपना बिजनेस देख रहा था और वालदा से बात तक न करता था। इसकी वालदा अकेली घर में रहकर बीमार हो चुकी थी, मगर अरशद को अपने काम से मतलब था। इसी वजह से इसकी वालदा इसे समझाती थी, मगर अब वो भी मजबूर हो गई थी। इसे अरशद की हर बात मानना पड़ती थी। इसकी माँ की मजबूरी थी। अब अरशद अपनी मर्जी का मालिक था। जुबैदा बेगम अरशद की माँ नीम बेहोशी की हालत में थी और हेलो डॉक्टर फराज, मैं अरशद बात कर रहा हूँ। घर पर तशरीफ़ लाई, वालदा की तबीयत ख़राब है। अब अरशद अब किसी डॉक्टर को कॉल कर रहा था। नगीना, तुम अम्मी के पास बैठो, डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। नगीना को अब परेशानी लाहिक हो गई थी कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, अम्मी अबू इंतज़ार में होंगे। रात के 10 बज गए थे। तुम इतने में फ्रेश हो जाओ। जाओ। नगीना ने इस बात में सर हिलाया और अरशद बाहर चला गया। डॉक्टर 10 मिनट में आ गया था। नगीना के तुम साथ वाले कमरे में चली जाओ। अरशद ने इसे इशारे में नगीना से बात किए। नगीना साथ वाले कमरे में चली गई। दूसरे कमरे में भी एसी ऑन था। वो जाकर बेड पर बैठ गई। वहाँ पर बैठी सोच रही थी कि अल्लाह पाक ने किस कदर केयरिंग खाविंद दिया है। डॉक्टर जा चुका था। नगीना शीशे के सामने दुपट्टा उतारकर अपने बाल सेट कर रही थी। नगीना के जिस्म से निकलने वाली महक से पूरा कमरा फैल चुका था, मगर इसे एहसास नहीं हो रहा था। वो गुनगुनाती हुए अपने बाल संवार रही थी। अरशद नगीना के पीछे से कमरे की जानिब से बगल घेर हो गया। अरशद, ये क्या कर रहे हो? प्लीज़ छोड़ दो, कोई आ जाएगा। नहीं मेरी जान, अम्मी सो चुकी है और घर पर कोई भी नहीं है। यह वही कमरा था जिधर अरशद ने पहली लड़की के साथ ही ऐसा सब कुछ किया था। अरशद ने नगीना को इस तरह पकड़ रखा था कि नगीना को इसका पकड़ना भी पागलपन दिखाई दे रहा था। अरशद, प्लीज़ ऐसा मत करो, ये सब ठीक नहीं। अरशद, जो अब नगीना के सामने आ चुका था, इसका चेहरा थाम कर नगीना को मुकम्मल तौर पर मदहोश कर चुका था। अब नगीना ने भी खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश छोड़ दी थी। नगीना मुकम्मल तौर पर अपने होश खो बैठी थी और अरशद के रंग में खुद को रंगवा लिया था। नगीना गुस्से में लाल पीली हो रही थी। अरशद, आपने अच्छा नहीं किया। नगीना की आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। अरशद ने नगीना को बहुत ज़्यादा प्यारे अंदाज में माजरत की और कहा कि तुम मेरी इज़्ज़त हो। अभी मैं अरशद, तुमने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। नगीना जो कुर्ब की हालत से गुजर रही थी, इसका लहजा थोड़ा सख्त था, मगर अब भी क्या हो सकता था। जो होना था हो चुका था। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कपड़े पहन लो। नगीना कुछ बोले बगैर ही तैयार हो चुकी थी और घर पहुँचकर खुद को कोसती रही। नगीना को कपकपी रात से लगी हुई थी। वो ठीक तरह से सो भी नहीं पाई। नगीना ने अपना मोबाइल बंद कर रखा था। अरे बेटा, तुम्हें तो बहुत सख्त बुखार है, कितना जिस्म तप रहा है। नगीना को चुप लगी हुई थी। दवा लेने के बाद नगीना की तबीयत कुछ बेहतर हुई। मोबाइल ऑन करने पर 50 के लगभग मैसेजेस नगीना को मौसूल हुए थे, जिस पर तहरीर था कि मैंने अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर देना। मैं अभी तुम्हें ही चाहता हूँ। कल मैं तुम्हारे घर अम्मी को लेकर पहुँच रहा हूँ, अपनी वालिदैन को बता देना। इस बात पर नगीना को काफ़ी हद तक सुकून मिला और 2 दिन तक ऑफिस न गई। दरवाजे की बेल बजी पर नगीना ने दरवाज़ा खोला। अरशद और इसकी माँ को अपनी आंखों के सामने पाकर दुपट्टे को सेट किया। अस्सलाम वालेकुम कहकर रास्ते से हट गई और नगीना पहली बार अपने वालिदैन को बता चुकी थी। आओ बेटा। नगीना की वालदा ने बहुत ही एहतराम से अरशद का इस्तकबाल किया और रूम में बिठा लिया। जुबैदा बेगम अब कमरे का बगौर जायज़ा ले रही थी। और बेटा क्या खाएंगे अब? नगीना की वालदा ने आने वाले मेहमानों से पूछा। कुछ नहीं अम्मी, खाने पीने के लिए नहीं आए। जुबैदा ने अरशद के मुंह से
امی کا نام سنا تو ارشد کی طرف گھورنے لگی۔ ارشد نے ساتھ ہی بات کو بدل دیا۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ نگینہ کی والدہ نے دروازہ کھولنے پر نگینہ کو اندر آنے کو کہا۔ نگینہ کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ نگینہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے نظریں چراتے ہوئے ناراضگی کے انداز میں ارشد کو دیکھا۔ بھرم زدہ چہرہ بنا کر ارشد کے عین سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ نگینہ کی والدہ نے خاموشی کو توڑتے ہوئے بات کرنا شروع کی۔ بیٹا جاؤ باقی کا بھی لے آؤ۔ اچھا امی میں جاتی ہوں۔ نگینہ کے باہر نکلتے ہی نگینہ کے والد کمرے میں داخل ہوئے اور بے حد خوشی سے ارشد کو گلے لگا کر ملا۔ کیسے ہو بیٹا؟ بہن جی آپ کیسی ہو؟ نگینہ کے والد نے ارشد کی والدہ سے حال و احوال پوچھا۔ جی بھائی صاحب اللہ کا شکر ہے کہہ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور ساتھ ہی بات شروع کر دی۔ بھائی صاحب ہم لمبی چوڑی گفتگو کے قائل نہیں ہیں۔ مجھے آپ کی بیٹی اپنی بہو بنانا ہے اور ہم ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے۔ زبیدہ نہ چاہتے ہوئے بیٹے کی ضد خود کو مجبوری کی وجہ سے آمادہ ہوئی۔ زبیدہ کا ماننا تھا کہ اگر بہو آ گئی تو ارشد مجھ سے مزید دور ہو جائے گا۔ زبیدہ غصے کی بھی تیز تھی۔ یہ بات سن کر نگینہ کے والدین ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اور کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ نگینہ کی والدہ نے جواب دینا شروع کیا۔ زبیدہ بہن کون نہیں چاہتا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی نہ کریں، مگر ہم ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جدھر نگینہ نوکری کیا کرتی تھی ادھر ہی شادی کر لی۔ آنٹی لوگوں کا تو کام ہی بولنا ہے، انہیں بولنے دی جائے۔ مجھے ایک بات کا جواب دے، جب تک آپ اپنے پرانے گھر میں تھے آپ کے تمام رشتہ داروں میں سے کسی نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ ارشد نے نگینہ کے والدین سے بات کرنا شروع کر دی۔ وہ تو بات ٹھیک ہے بیٹا، مگر ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم نے تو وہ دن بھی دیکھے ہیں جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آنٹی میں سارے حالات سے واقف ہوں، آپ چھوڑ دیں باقی۔ زبیدہ ارے باجی آپ خواہ مخواہ میں پریشان ہو رہی ہیں، ہم سیٹ کر لیں گے، آپ بس ہاں کر لیں۔ ہم نے اپنی بیٹی سے بھی اس کی مرضی جاننی ہے تب ہی جواب دیں گے۔ اب نگینہ کے والدین قدر فکر مند ہو چکے تھے۔ اچھا اب اجازت دے، مجھے کسی کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ بیٹا شام کا کھانا کھا کر جانا۔ نگینہ کے والد نے آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ رہے تھے۔ کیوں نہیں انکل، پھر کبھی چکر لگائیں گے اور اگلی دفعہ مٹھائی کا ڈبہ بھی لائیں گے۔ تمام افراد اس وقت خوش تھے۔ یہ سب باتیں نگینہ دروازے پر کھڑی کان لگا کر سن رہی تھی۔ نگینہ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ آخرکار اسے اسی کی محبت ملنے جا رہی تھی، مگر اب ارشد کے سامنے وہ کھلی کتاب بن چکی تھی۔ نگینہ اس حوالے سے تھوڑی بہت پریشان تھی۔ جیسے ہی ارشد زبیدہ اور باہر نکلے نگینہ ایک سائیڈ پر ہو گئی۔ نگینہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کی نیت سے آ گئی۔ اب وہ والدین کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی سوچ کے مطابق اس کے والدین نے اسی بارے میں بات کرنی تھی۔ نگینہ بہت خوش تھی۔ بیٹا ہم نے ضروری بات کرنی ہے، تمہارے پاس آئے تھے رشتہ لے کر اور انہیں ساری بات کا پتہ بھی ہے۔ بیٹا اگر تم ہاں کرو گی تو ہم آگے جواب دیں گے۔ نگینہ کچھ لمحے سوچنے کے بعد والدین سے کہنے لگی، امی ابو آپ لوگوں کو حق حاصل ہے، جو آپ کا دل ہے وہ کریں۔ اگلی صبح نگینہ گھر سے بے فکر ہو کر نکلی اور اسی سٹاپ پر کھڑی ہوئی جدھر ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ آج نگینہ ارشد کو کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ ارشد کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ نگینہ کے دل میں وہم آنے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ اپنا مطلب نکل گیا تو شاید چھوڑنا چاہتا ہے۔ اگر وہ چھوڑنا چاہتا تو میرے گھر رشتہ نہ لے کر آتا۔ نگینہ نے بے چین ہو جا رہی تھی۔ سامنے آنے والی گاڑی نے ہارن نے نگینہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کار نہیں لگ رہی تھی۔ جب گاڑی نگینہ کے سامنے آ کر رکی تو نگینہ کی جان میں جان آئی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارشد آج کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ارشد، آج لیٹ کیوں ہوئے اور تمہارا نمبر بھی بن جا رہا تھا؟ کچھ نہیں ہوا، موبائل کی بیٹری لو ہو گئی تھی۔ نگینہ امی نہیں مان رہی ہے، بس اسی لفظ نے نگینہ کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اور جو بھی تمہارے اور میرے درمیان ہوا ہے اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ نگینہ کی طبیعت خراب ہونے لگی اور چکر آنے لگے اور بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے پر نگینہ نے خود کو بیڈ پر پایا، اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ارشد کی طرف دیکھا اور سب یاد آ گیا۔ اب کیسی ہو؟ ارشد نہایت پریشانی کے عالم میں نگینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھماتے ہوا نگینہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نگینہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے ناگواری نظروں سے ارشد کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، جائے اب مجھے اپنی زندگی جی لینے دیں۔ نگینہ سخت پریشان تھی، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی ارشد کی اماں انکار کر دے گی۔ ارشد نگینہ کو مطمئن کر دیا تھا تاکہ شادی میں تم سے ہی کروں گا۔ اچھا بابا غصہ ختم کرو نا، جائے آپ۔ نگینہ ارشد پر برس پڑی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مجھے استعمال کر رہے ہیں،
ورنہ اتنا قریب نہ آتی، مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ نگینہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ارشد نگینہ کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ نگینہ میں تم سے مذاق کیا تھا، امی مان گئی تھی اور 2 ماہ کے اندر شادی کے لیے رضامند ہو چکی ہے۔ ارشد اپنی بات کی وضاحت کر رہا تھا۔ آپ مجھے آزما رہے تھے ارشد، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے اس مذاق نے مجھے موت کے منہ میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اچھا بابا اب چپ کرو، مذاق کیا تھا۔ ارشد نے نگینہ کو سہارا دیتے ہوئے تکیے سے ٹیک لگا دیا۔ ارشد شاید آج اس سے پہلے اتنا پریشان نہ ہوتا۔ سوری آپ کا دل دکھایا۔ نگینہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ چلے اب نہیں، ابھی ڈاکٹر اجازت دے گا تو جانا ہے۔ ارشد مجھے گھٹن ہو رہی ہے، چلے نا۔ اچھا بابا چلتے ہیں۔ نگینہ اب کافی بہتر سی۔ ارشد صاحب ان کو ڈپریشن کی وجہ سے مسئلہ ہوا، خیال رکھے کہ ڈاکٹر ارشد کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ عمران کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے فکر ہو جاؤ، یہ میڈیسن لے لینا۔ عمر ارشد کو نسخہ پکڑاتے ہوئے بولا۔ اور ہاں نگینہ کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، خوراک کا خاص خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے یار اب چلتا ہوں۔ ارشد عمران سے اجازت لی اور نگینہ کو لے کر چل دیا۔ نگینہ آپ گھر چلی جائیں، آرام کریں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، میں ایک میٹنگ میں جا رہا ہوں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آج کون سی میٹنگ ہے؟ ایک بڑا آرڈر پورا کرنا ہے، چلیں میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ نگینہ ارشد سے ماحول گفتگو تھی کہ اچانک آگے سے آنے والی کار نے ایک دم سے ارشد کی گاڑی کو ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ ارشد نے فوراً اسٹیئرنگ کو برق رفتاری سے گاڑی کو سنبھال لیا اور ہوش بحال ہونے پر نگینہ ارشد ہم کلام ہوئے۔ ارشد آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ کسی میٹنگ میں نہیں جائیں گے؟ ارشد اس بات میں سر ہلاتا ہوا آفس کی طرف چل دیا۔ ارشد کے گھر والوں نے تاریخ کے حوالے سے گھر کو مدعو کیا تھا اور شادی کی تاریخ پکی کر لی گئی تھی۔ ارشد اب نگینہ سے پہلے کی طرح بات نہ کرتا تھا۔ نگینہ نے بھی یہ بات محسوس کی اور شکوہ کیا۔ نگینہ اب آپ اور میں ایک ہونے جا رہی ہیں، اب زیادہ بات نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ نگینہ نے بات کو سمجھا اور گھر میں تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ جی صاحب یہ میری بیٹی ہے مہوش، آپ کو اس دن بتایا تو تھا اس کے بارے میں؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، کیا کرتی ہوں مہوش؟ ارشد اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ عورت میں ایک خاصیت بھی یہ بھی ہوتی ہے کہ مرد کی نظر کو بہت جلدی پہچان جاتی ہے۔ کیا کرنا چاہتی ہو زندگی میں؟ مہوش بھی ارشد کے نگاہوں کو نوٹ کیا اور اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے صاحب میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ اوکے گڈ، یہ تو لباس کیسا پہنا ہوا ہے؟ ارشد مہوش کے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے مہوش کو متوجہ کرنا چاہا۔ مہوش نے ایک بار بھی ارشد کی طرف نہ دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ میری والدہ کا خاص خیال رکھنا ہے، ان کی دعا اور کھانے پینے کا یہ دھیان دینا ہے، اور رات کو بھی اکثر رکنا پڑ سکتا ہے۔ جی صاحب جی بہتر ہے، اور مجھے شکایت کا موقع نہ ملے۔ جی صاحب ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اچھا ذرا رکو۔ ارشد نے مہوش کو دوبارہ بلایا اور پیسے دیتے ہوئے کہا یہ لو، ڈھنگ کے کپڑے خرید لو۔ مہوش پیسے پکڑتے ہوئے آگے بڑھی۔ ارشد نے پیسے دینے کے بہانے مہوش کے ہاتھ کو مسلنا شروع کیا۔ فوراً سے ہی مہوش نے جھٹکتے ہوئے ہاتھ کو چھڑوا دیا اور باہر چلی گئی۔ مہوش اپنے گھر کے حالات سے تنگ تھی، اسی مجبوری سے اس سے نوکری کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ مہوش ایک نازک اندام سی لڑکی تھی، بہت معصوم اور کم عقل۔ اکثر کم عقل لڑکیاں ہی اپنا سب صرف کچھ لفظوں میں مار کھا لیتی ہے، سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ مہوش کی بلوری آنکھیں دیکھ کر ارشد کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ مہوش کا والد بیچارہ کیا نہ کرتا، مجبوری میں اس نے مہوش کو نوکری کے لیے بھیج دیا۔ تیاری زور و شور سے شروع ہو چکی تھی، اب شاپنگ کی باری تھی۔ ارشد میں نے شاپنگ کرنی تھی۔ ٹھیک ہے کل کا پروگرام بنا لو، چلو چلتے ہیں۔ شادی میں اب 1 مہینہ باقی رہ گیا، نگینہ کی نئی زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ نگینہ نے بہت سارے خواب سجا کر رکھے تھے، ارشد جو آج تک نہ کہہ پائی وہ آج کہہ رہی ہوں۔ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہو چکی ہے، مجھے کبھی اکیلا نہ کرنا، میرا سب کچھ تم ہی ہو۔ نگینہ کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارا ہی ہوں اور تم میری ہو۔ نگینہ اس کے لفظوں کو محسوس کر رہی تھی، مزید اس کی بنتی جا رہی تھی۔ ارشد کے پاس الفاظ کی تحریر اس طرح سے جامد تھی کہ وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا لیتا۔ ارشد کی والدہ نے بھی نگینہ کی پسند کی شاپنگ کرنے کے لیے نگینہ کو بلایا اور شاپنگ کے لیے مارکیٹ چلی گئی۔ بہو اپنی پسند کی شاپنگ کر لینا، بعد میں ارشد کے کان نہ بھرتی رہنا کہ فلاں چیز نہیں لی، ایک بار میں شاپنگ کر لینا، بار بار مجھ سے آیا نہیں جاتا۔ ساس کا یہ رویہ نگینہ کے لیے نیا تھا، وہ نہ جانتی تھی کہ شادی سے پہلے بیٹی کہنے والی ماں بعد میں واقعی ساس بن کر دکھاتی ہے۔ جی امی میں پسند کر لیتی ہوں، آپ بے فکر ہو جائے۔ بھیا وہ سامنے پنک سوٹ دکھائے۔ امی یہ ارشد کو بہت پسند ہے۔ زبیدہ کو تھوڑی سی جلس ہونے لگی، نہیں نہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ ارے اب زبیدہ کے دل میں یہ بات تھی کہ ارشد کی پسند کی ہر چیز پہنے گی تو وہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ اچھا وہ دوسرا والا سرخ جوڑا دکھائے۔ امی یہ کیسے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، تمہیں پسند ہے تو لے لو۔ زبیدہ ہر بات میں ناگواری دکھا رہی تھی، اسے نگینہ کی ماضی کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ غریب
थी, अरशद की तरह इज्तिनाब भी किया करती थी। ठीक है भाई, ये वाला पैक कर दे। निगी ने काफ़ी सारी शॉपिंग की और शॉपिंग मॉल से बाहर आ गई। अरशद बाहर खड़ा था, वालदा का इंतज़ार कर रहा था। अम्मी जान, हो गई शॉपिंग? हाँ हो गई। इससे पहले कि नगीना कुछ और बात करती, जुबैदा ने बात को आगे ना बढ़ने दिया। चलो बेटा, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। अम्मी जान चले। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे नगीना के वालिदैन की फ़िक्र लाहिक हो जा रही थी। नगीना के वालिदैन अकेले हो जा रहे थे। कहने को तो एक शहर में ही थे, मगर ससुराल और मैके में ज़िंदगी का फ़र्क होता है। एक बात की खुशी थी कि नगीना का फ़र्ज अदा होने जा रहा है। नगीना ऑफिस में किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात न करती थी, यहाँ तक कि टी बॉय से भी बहुत ही इज्जत से पेश आती थी। इसकी बनिस्बत अरशद बहुत गुस्से वाला था। अजमत, एक चाय ले आओ। सर बहुत दुख रहा है। लाया मैम। अजमत बाहर आ गया और फ़ौरन से पहले नगीना के टेबल पर चाय रखते हुए चाय की ट्रे नीचे गिर गई। अंधे हो गए, देखकर काम नहीं कर सकते हो? गंदा कर दिया, साफ़ कर दो। अरशद, जो अभी नगीना के ऑफिस में आया हुआ था, क्या हो गया है आपको? चाय ही गिरी है ना, आसमान सर पे क्यों उठा रहे हो? नगीना ने अरशद से कहा। नगी, तुम हर शख्स को लिमिट में रखा करो, ये लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। अरशद, ऐसा नहीं कहते, ये भी साफ़ कर देगा। अच्छा ठीक है, वो कल वाली डील पक्की हुई थी, वो फाइल तैयार करके भिजवा दो। आज वो लोग एग्रीमेंट पे साइन करने आ रही है। ऐसा करो, तुम ड्रेस बदल लो और दुपट्टा मत ओढ़ना, और लोग शायद इस चीज़ को नोट कर लें। अरशद की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अपने होने वाली बीवी को मोहरा बनाकर प्रोजेक्ट ले रहा है। मगर अरशद, मैं आज तक ऑफिस में बगैर निकाब के नहीं आई हूँ और आप बगैर दुपट्टे के मुझे इनमें बिठाएंगे? नगीना जान, आपको पता है कि ऐसे प्रोजेक्ट कभी कभार हाथ लगते हैं और मैं इसको गंवाना नहीं चाहता हूँ। इस प्यारे अंदाज में बोला कि नगीना को अच्छा लगा और वो इस बात में सर हिलाते हुए अपनी कुर्सी से उठी और कपड़े बदलने की तैयारी करने लगी। वेलकम सर आए। अरशद पुरजोश अंदाज में आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करने लगा और अपने ऑफिस में ले आया। नगीना की तरफ इशारा करते हुए इसका तारुफ करवाने लगा कि ये मेरी असिस्टेंट है, नगीना मेरा राइट हैंड है। नगीना नजरें झुकाए सब सुन रही थी। नगीना के खुले बाल और गले में दुपट्टा इस बात की गवाही दे रहा था कि प्रोजेक्ट में आने वाले मेहमान हवस का शिकार थे। जिस अंदाज में मेहमान नगीना को देख रहे थे, जैसे शिकारी कुत्ता अपने शिकार को देखते हैं और मौका मिलते ही झपट लेते हैं। नगीना ज़रा सी निगाह उठाती और अरशद इशारा देखा। अरशद का इशारा नगीना समझ चुकी थी। नगीना अब प्रोजेक्ट के हवाले से दूसरी पार्टी को खड़ी होकर सप्लाई और अहम मौज़ूआत पर बात करना चाहती थी। दूसरी पार्टी में एक अधेड़ उम्र शख्स रंग सांवला, पस कद और पैंट शर्ट में टाई लगाए हुए था, जबकि दूसरी तरफ लड़का एक नौजवान था, शायद ये इसका असिस्टेंट था। अरशद नगीना को इसके आगे इसलिए लाना चाहता था कि इस उम्र के लोग नौजवान लड़कियों की बात मानते हैं और इससे आसानी एग्रीमेंट पर साइन करवाए जा सकते हैं। तो सर, हमारा काम यहाँ तक है कि आपको माल की पैकिंग करवाकर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, और बाकी ज़रूरी बातें जो अरशद ने नगीना को बताई थी, वो सब बातें नगीना ने बशीर साहब और उनके असिस्टेंट को बता दी। बशीर इसकी बात पर तवज्जो कम और इसके जिस्म पर नज़र ज़्यादा रखे हुए था। ठीक है, हमें एग्रीमेंट दे, मैं दस्तखत कर लेता हूँ। इस बात पर अरशद ने मुस्कुराया और नगीना को एग्रीमेंट पकड़ाते हुए मुस्कुराया। नगीना टेबल पर खड़ी पेन हाथ में थमाते हुए, सर ये ले, इधर साइन कर दे। शैतानी मुस्कुराहट के साथ इस पसकस आदमी ने साइन करने के लिए पेन पकड़ लिया। नगीना के हाथ को छूने की कोशिश करने लगा। नगीना झट से थोड़ा साइड पर हो गई। अरशद ना कोई बात की ना नोट की, क्योंकि इसे प्रोजेक्ट मिलने की खुशी थी। अरशद असिस्टेंट से माहू गुफ्तगू हो गया था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि नया काम मिल गया है। अरशद आपकी ने इसकी निगाहें देखी थी, किस कदर ख़तरनाक नज़र आ रहा था। नगीना, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज किया करो, आगे बढ़ो तो आगे बढ़ सकोगे। नगीना ने इस बात में सर हिलाकर अरशद की बात में हाँ मिलाई और कैफ़े में जाकर काफ़ी अच्छा, कल ज़रा मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, पीछे ख्याल रखना। ठीक है अरशद, मैं देख लूँगी। अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं ले आऊँगा। अरशद नगीना को देखते हुए सवाल कर रहा था। मेरी तरफ देखो, क्या बात है, आज भी बुझी बुझी से लग रही हो? कुछ तो नहीं, बस वैसे ही। तुम नहीं बताओगी क्या? वो अरशद से मेरे हाथ को छूने की कोशिश की थी। मैं आइंदा इनके सामने नहीं जाऊँगी। नगीना, मैंने आपसे कहा था ना छोटी मोटी बातों को दिल पर मत लिया करो। अच्छा ठीक है। आज नगीना की मेहंदी थी, इसकी तमाम सहेलियाँ मौजूद थी और छेड़खानी कर रही थी। जीजू तो तुम्हें देखकर ही पागल हो जाएंगे, बहुत प्यारी लग रही हो। देखो, हमें भूल मत जाना, और शादी हो तो देखना हमारा नाम तक भूल जाओगी। जीजू के साथ ही बात किया करोगी। शादी के बाद इसकी सहेलियाँ कह के लगाकर हंस रही थीं। चलो हटो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है किसी को भूल जाए। नगीना की वालदा, जो सारा माजरा देखकर और सुन रही थी, मुस्कुराती हुई नगीना के सर पर हाथ रखकर इसके
दुआई देने लगी। ये लम्हात कैमरे ने काबू कर लिए। नगीना की वालदा इससे पहले कि आंसू आते आंसू छुपाकर अंदर कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। बेगम, क्या हुआ? खुशी के लम्हात है और तुम रो रही हो? हमारी बेटी महल में जा रही है, इसे दुआएं दो और चलो चुप रहो। नगीना के वालिद ने नगीना की वालदा को गले से लगाते हुए सहारा दिया और चुप करवाते हुए तसल्ली दी। नगीना सुर्ख जोड़े में मलबूस थी और नज़रों को झुकाए हुए अब डोली का इंतज़ार कर रही थी। नगीना पे आज ऐसा निखार आया हुआ था कि इससे पहले नगीना पे इतना निखार ना आया था। शायद ये मोहब्बत का निखार था जो सिर्फ नगीना ही समझ सकती थी। नगीना का दिल एक लम्हा बहुत ज़्यादा खुश और अगले ही लम्हे घर वालों की जुदाई का भी गम था। मोबाइल पर बेल बजने पर नगीना का ध्यान फ़ौरन मोबाइल पर गया और मुस्कुराते हुए स्क्रीन को देखा जिस पर अरशद का नाम था। हेलो मेरी जान, क्या कर रही हो? अरशद की आवाज़ सुनकर नगीना ने जवाब में कहा, आपके आने का इंतज़ार। सच में? हाँ ना सच में। नगीना को दूसरी जानिब से अरशद के इर्द गिर्द शोर सुनाई दे रहा था। अरशद, क्या हुआ? किस बात का शोर है? हेलो हेलो अरशद, तुम मुझे सुन रही हो ना? अरशद बोलो ना, क्या हुआ है? अरशद की जानिब से कोई जवाब मौसूल न हो रहा था। अलबत्ता शोर की आवाज़ आ रही थी मगर शोर में आवाज़ को समझने में भी कासिर थी। अचानक से कॉल ड्रॉप हो गई थी। नगीना ने कई बार कॉल की नाकाम कोशिश की। अब नंबर बंद जा रहा था। नगीना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बेहद परेशानी की हालत में बेड से उठकर खिड़की से बाहर देखा तो सामने आती बारात को देखकर दिल को सुकून मिला और फिर वापस अपनी जगह पर बैठ गई। नगीना, महरीन वलशकूर अकरम, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलाना साहब ने नगीना से 3 बार कबूल कब पूछने के बाद मुबारकबाद दी और घर को चल दिया। नगीना माँ के साथ बलक बलक कर रोने लगी। फिर एक के बाद दीगर सबको मिली और गाड़ी में सवार हो गई थी। रास्ते में आज कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक गाड़ी ने हचकुला खाया। नगीना ने मुंह से अल्लाह बारी ताला का जिक्र बुलंद हुआ और साथ ही गाड़ी का इंजन बंद हो गया। गाड़ी में बैठे सब अफराद परेशान हो गए। गाड़ी को सर मैं चेक करता हूँ। ड्राइवर गाड़ी के दरवाज़ा खोल कर गाड़ी को चेक करते हुए, साहब इंजन बहुत गर्म हो गया, पानी डालना होगा। ओके तुम करो ठीक। अरशद ये कहकर मोबाइल फ़ोन कान से लगाते हुए मसरूफ़ हो गया। जी साहब जी आ जाए, इंजन स्टार्ट हो चुका है। अरशद के घर खैरियत से पहुंच गई थी। सब ने शुक्र अदा किया। नगीना पहला कदम गाड़ी से नीचे उतारा, ज़रा सी निगाहें उठाकर देखी। कमकमी लाइटों से सारा महल जगमगा रहा था। कदम नीचे रखते हुए गोलियों की आवाज़ से गूंजने लगा। नगीना अब घर के अंदर कदम रखा। अरशद के घर में इनके करीबी कुछ ख़ानदानी लोग ही थे। नगीना के कदम ज़मीन पर पड़ती हुई गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी जिससे माहौल में 4 चांद लग गए थे। अरशद की कज़न मिलकर नगीना का भरपूर इस्तकबाल किया। भाई पैसे, अरशद की फैमिली में दरवाज़ा रुकवाई की रस्म थी। तमाम कज़न इकट्ठी हुई। अरशद पैसे ऐसे मांगने लगी जैसे तावान मांगा जाता हो। अरशद की चौंकी कोई बहन नहीं थी, इसीलिए अपनी कज़न्स को ही बहन मान रहा था। भाई हमें तो पूरे 50,000 रुपये चाहिए, इससे कम में कोई बात नहीं बनेगी। अपनी भाभी से पूछो, अगर इजाज़त देती है तो ले लो। अभी से जोरू का ग़ुलाम बनने जा रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। अब तमाम माहौल मज़ीद खुशगवार बन गया था और नगीना भी मुस्कुरा रही थी। अच्छा ये लो। अरशद ने नोटों की गड्डी लड़कियों की तरफ बढ़ा दी। अब नाजुक कलियां नगीना को इसके रूम तक ले जा रही थी और पीछे पीछे अरशद भी था। भाई अभी बहुत वक्त है, आप किधर जा रहे हैं? मैं, एक लड़की ने इशारती अंदाज में अरशद को कहा। अरशद कुछ शर्मिंदा होने के बाद बाहर की तरफ चल दिया। नगीना ने अपना कदम इसके सजे सवरे कमरे में रखते हुए और कमरा देखकर हैरान रह गई। नगीना हर कदम पे गुलाब के फूल की पत्तियां बिखरी पड़ी हुई थी। कमरा लाइट से रोशन था। बेड पर फूलों की गुलदस्ता और फूल बिखरे गए थे। परफ्यूम की महक चारों तरफ कमरे को महका रही थी। नगीना ने जैसा सोचा था इससे अच्छे कमरे को पाया। रात के 11 बज चुके थे। अब नगीना की धड़कनें तेज़ होना शुरू हो गई थी और दरवाजे की खटखटक ने नगीना को मतवज्जो किया और बाहर से अरशद दरामद हुआ। शेरवानी में नगीना, आज मेरी दुनिया मुझे मिल गई है। क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? आज तो मेरी महरम बन गई हो और मुझे इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। आज अरशद के मुंह से पहली बार ऐसे लफ्ज़ निकल रहे थे जो आज से पहले कभी भी अरशद ने ना कहे थे। नगीना शर्म के मारे निगाहें मज़ीद झुकाती रही और अरशद के हक महर में नगीना को प्लॉट, मकान और उसके नाम कर दिया था। जेवर से लदी ट्रे जो पहली रात का तोहफ़ा दिया अरशद ने नगीना के सुपुर्द कर दिया। कम पेश 50 तोले के जेवर उसमें मौजूद थे। मोहम्मल की चादर पर बैठी थी जो कि बेहद सुकून दे रही थी। अरशद ने नगीना का हाथ थाम लिया। रात को आंखों में
कटी। अरशद आप इतना चाहते हैं, मुझे आज से पहले कभी भी पता ना चला। नगीना जो कुछ तुम्हारे आने के बाद मुझे हासिल हुआ है, तुम्हारे आने से पहले ये ना था जो आज हूँ और तुम्हारी बदौलत ही हूँ। अरशद हाथ में नगीना को हाथ के लिए मौखू गुफ्तगू था। दरवाजे पर दस्तक होने से पता चला कि सुबह के 6 बज चुके थे। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी हो जाता हूँ, मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी भी करनी है। अरशद नगीना का हाथ नरमी से पीछे करते हुए जैसे जी हस्बैंड साहब जी आप जाए, पहले फ़्रेश हो जाए, मैं बाद में हो जाऊंगी। एक ही दस्तक के बाद दरवाजे पे दोबारा दस्तक ना हुई। शायद कोई वक्त का बताना चाहता था। नगीना की हर रात अब रंगीन रात में ढलने लगी। अम्मी जान दवा का वक्त हो चुका है। नगीना ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। अरशद ने कहा था अगर ज्वाइन करना चाहती हो तो कर सकती हो। नगीना अब घर की जिम्मेदारी निभाना चाहती थी। बस नगीना ने ऑफिस को अलविदा कह दिया था। ज़ुबैदा नगीना से नफरत करती थी। ज़ुबैदा के दिल में ये वहम था कि अरशद अब बदल चुका है और जो जोरू को ग़ुलाम बनकर रह गया, मगर नगीना का दिल साफ था। नगीना ज़ुबैदा के कमरे में जाकर ज़ुबैदा को सहारा देते हुए दवा के लिए उठा रही थी। मुंह चढ़ाती हुई ज़ुबैदा तकिए पर कमर टिका के बैठ गई। नगीना गोलियां सास के हाथ में थमाती हुई कहने लगी, अम्मी तबीयत कैसी है? तुमसे मतलब तुम बस अपना काम करो, मेरी फ़िक्र छोड़ दो तो बेहतर होगा। मेरी बेटी को अपने जाल में फंसाकर इसे कैद करना चाहती हो। बज़ाहिर लग रहा है कि ज़ुबैदा का गुस्सा बहुत पुराना है, मगर वो कुछ कह नहीं सकती। अम्मी जान ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं। अरशद तो मुझे आपकी खिदमत के लिए यही घर पर रखा हुआ है। बस ज़्यादा बातें ना करो, दवा दो और चली जाओ कमरे से। नगीना बिना कुछ बोले ही दवा देकर अपने कमरे में चली गई। शादी को 1 माह हो चुका था। अम्मी की तबीयत कैसी है? अरशद ऑफिस से देर से आता था। अपनी माँ से मिलने का इसे वक्त ही नहीं होता था। जी अब पहले से कुछ बेहतर है। तुम दवा वक्त पर दे तो रही हो? जी अरशद वक्त पर तो दे रही हूँ। अरशद को जैसे अब नगीना में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। नगीना से इसका लहजा थोड़ा सा बदल चुका था। नगीना क्या बात है? अरशद बहुत उखड़े उखड़े से लग रहे हो। कुछ नहीं नगीना, बस यूं ही। अरशद अपना मोबाइल इस्तेमाल करने में मसरूफ़ था। नगीना की बात को इतनी ख़ास तवज्जो नहीं दे रहा था। अच्छा छोड़ो सारी बातें, तुम बताओ क्या करती रहती हो सारा दिन? मेरी कोई याद नहीं आती? अरशद नगीना का हाथ पकड़े हुए आहिस्ते से पूछ रहा था। चलो तुम चेंज कर के आओ। नगीना को ऐसा महसूस हो रहा था कि अरशद सिर्फ रात का ही हमसफ़र है, इसे बस रात को ही कुछ पलों के लिए बात करता है। जी मैं चेंज करती हूँ। नगीना बेड से उतरे हुए बाथरूम की तरफ चल दी। अम्मी अब कैसी है तबीयत? अरशद ऑफिस जाने की तैयारी में था। अपनी माँ से मिलने के लिए कमरे में जाकर हाल अहवाल पूछने लगा। मिल गई फुर्सत, अब इस नागिन के पास ही बैठे रहते हो। ना माँ का ख्याल रखा है और ना ही माँ का कोई ख्याल ही नहीं है तुम्हें, बस बेगम के पास ही रहना है। अरे अम्मी जान क्या बात कर रही हो? नगीना ने कुछ कहा है आपसे? बताएं, मैं इसकी अभी खबर लेता हूँ। अरशद माथे पर बल डालते हुए बाहर जाने लगा। रुको अरशद, इसे मत कुछ भी ना कहना वरना मेरी ही बुराइयां करने शुरू हो जाएगी। अम्मी क्या हुआ है? मुझे बताए तो सही। अरशद ज़ुबैदा के पास बैठे हुए पूछ रहा था। बेटा तुम गरीब घराने की लड़की को ब्याह कर लाई हो, अपना स्टैंडर्ड तो देखो, और इसे देखो किसी कूड़ा उठाने वाले के ख़ानदान से लगती है। अम्मी बस करे, अगर उसने सुन लिया तो क्या सोचेगी? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं उसकी ड्यूटी लगा देता हूँ। नगीना आपके पास नहीं आया करेगी। बेटा मैं फ़िक्रमंद हूँ कि वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगी। ज़ुबैदा झूठे आंसू आंखों में लाते हुए अरशद को पिघलाना चाहती थी। अच्छा अम्मी मैं कुछ दिनों के लिए इसके मैके को भेज देता हूँ, पीछे आपका ख्याल महविश कर लेगी। हेलो रशीद, कल से महविश को काम पर ले आना। अरशद कान में मोबाइल लगाते हुए रशीद से बात कर रहा था। बहुत मेहरबानी साहब जी, कल से आ जाएगी। नगीना आज बाहर चलते हैं, डिनर बाहर ही करेंगे रात को। अरशद आज जल्दी घर आ गया था। नगीना ने इस्पात में सर हिलाते हुए तैयार होने लगी। मैंने महविश को काम पर रख लिया है, तुम सारा दिन घर के काम करती रहती हो, तुम्हारी मदद के लिए रशीद की बेटी को रख दिया है। ठीक है अरशद, गरीब लोग हैं यहाँ, इनकी इनकम से वालिदैन के सहारा भी बन जाएगी। चलो आज इस होटल पे चलते हैं। अरशद की गाड़ी का इंजन बंद करते हुए नगीना से और होटल में दाखिल हो गए। अरशद मुसलसल मोबाइल पे नज़रें टिकाई मोबाइल में मसरूफ़ था। अरशद अब तो छोड़ दे ये मोबाइल को प्लीज़, जब देखो आप मोबाइल इस्तेमाल कर रही होती है, मेरी बात भी नहीं सुनते। ये ले बेगम जी रख लिए मोबाइल। अरशद मोबाइल
पॉकेट में रखते हुए नगीना की तरफ मुतवज्जे हो गया। अच्छा अब ये बताओ हनीमून मनाने किधर का प्लान है? नहीं अरशद, अभी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जब मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगी तब चलेंगे। नगीना और अरशद की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अरशद को सिर्फ नगीना के जिस्म की हवस थी, जबकि नगीना को अरशद से हकीकी मोहब्बत थी। अच्छा तुम एक काम करो ना, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, अगर अपने घर जाना चाहती हो तो चली जाओ, मगर अरशद अम्मी जान का ख्याल कौन करेगा? अरे तुम इस बात को छोड़ दो, महविश कल से काम पर आ जाएगी, तुम्हें सुबह ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा अरशद ठीक है मेरी प्यारी बेटी, आओ। नगीना की वालदा ने दरवाज़ा खोलते ही आगे नगीना को पाया। कैसी हो मेरी बेटी? नगीना की वालदा इसे गले लगाते हुए हाल अहवाल तलब करने लगी। मैं ठीक हूँ अम्मी, फ़र्स्ट क्लास हूँ, पहले की तरह। हमारा दामाद नज़र नहीं आ रहा है अम्मी, इन्हें ज़रा काम था। नगीना वजाहत करते हुए कमरे में चली गई। सुनते ही देखते कौन आया है। नगीना 1.5 माह बाद अपने घर आई थी। मेरा प्यारा बेटा। बाप ने आते ही नगीना को गले लगा लिया और माथा चूमते हुए बहुत बहुत अरशद दिखाई नहीं दे रहा है? नगीना के वालिद ने अगला सवाल अरशद के हवाले से किया था। अभी भी कुछ घरानों में दामाद को सर आंखों में रखा जाता है, सर आंखों में रखा जाता है। नगीना भी ऐसी ही इज्जत देने वाली घर की थी, इन्हें ज़रा काम था इसलिए वो चले गए। बेगम कुछ बनाओ, हमारी बेटी इतने दिनों बाद आई है। जी जी जा रही हूँ। समीर और रिजवान किधर है? नगीना ने छोटे भाइयों का पूछते हुए इधर उधर निगाह डाली। समीर अभी सो रहा है, रिजवान दही लेने गया है। बेटा सही होकर बैठ जाओ, थक गई हो। अम्मी जी सारी रात सो के ही तो उठी हूँ, थकूंगी कैसे? और मेरी थकन अम्मी को देख कर ही ख़त्म हो जाती है। नगीना मुस्कुराते हुए अपने अब्बा की तरफ देखा। अच्छा ये मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। नगीना अब्बा के हाथ में एक डिब्बा पकड़ाते हुए बोली। अरे बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी, तुम आ गई हो बहुत है। अब्बा क्या मेरा अब कोई भी हक नहीं है? नगीना अफसरदगी के आलम में अब्बा जान की तरफ देख रही थी। अरे बेटा कैसी बात कर रही हो, तुम्हारी ही घर है। बाजी अस्सलाम वालेकुम, आओ मेरे लाडले भाई। बाहर से रिजवान आया। आप ही मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? मुझे तो याद ही नहीं रहा। नगीना शरारती लहजे में रिजवान को बोल रही थी। रिजवान मुंह बनाकर बाहर को जाने लगा। अरे रुको मेरे बबर शेर, ये लो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ भला। नगीना रिजवान को पैकिंग वाला डिब्बा पकड़ाते हुए माथा चूमा। अम्मी महविश किधर है? बेटा इसकी वालदा की तबीयत ख़राब थी, रशीद के साथ चली गई है, मैंने ही इजाज़त दे दी थी। अच्छा आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा अब काफ़ी बेहतर है, बहुत ख्याल रखा है महविश ने। यह तो अच्छी बात है कि अम्मी मैं कल देर से घर आऊँगा, मीटिंग में जा रहा हूँ। महविश को कह देना कि रात को इधर ही रुक जाए। मोबाइल पर बेल बजने के बाद नगीना ने मोबाइल की तरफ लपकी। हेलो कैसी हो नगीना, बहुत जल्दी याद आई। नगीना शिकवा करते हुए अरशद से बात कर रही थी। पूरा हफ्ता हो गया आपको याद तक नहीं किया। आपने याद तक नहीं किया यार, कुछ तो मसरूफ़ हूँ मैं, इसीलिए कॉल नहीं की। कब आ रही हो? अम्मी अब्बू आपका पूछ रहे हैं। मैं कुछ दिन में आ जाऊँगा, बस थोड़ा सा काम रह गया। अरशद वजाहत करते हुए। अम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ अब काफ़ी बेहतर है। महविश आ रही है? हाँ आ रही है। सर आरिफ साहब आगे है। दूसरी जानिब से शायद कोई अरशद से मुखातिब कर रहा था। आया बस। अच्छा नगीना मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बस अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। अरे महविश कैसी हो? अरशद दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए बैग महविश को पकड़ाते हुए हाल अहवाल पूछने लगा। तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? जी साहब अब बेहतर है। हाँ मुझे साहब जी मत कहा करो, सर बोला करो। जी साहब जी। ओहो जी सर जी। महविश अपना लफ्ज़ को दुरुस्त करते हुए अरशद से के पीछे पीछे जा रही थी। रशीद चला गया था? जी सर अब्बू चले गए हैं, घर रात के 11 बज चुके थे। तुमने मेरे रूम की सफाई कर दी है? नहीं सर मुझे याद नहीं रहा। अच्छा जाओ सफाई कर लो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। जी सर जी करती हूँ। महविश हुक्म की तामील करते हुए अरशद के कमरे में चली गई थी। बहुत खूबसूरत हो तुम। अरशद अब फ्रेश होकर बाहर आ गया था, मुसलसल महविश के जिस्म की तरफ देख रहा था। महविश बेड को आगे की तरफ झुककर साफ कर रही थी। महविश को एहसास तब हुआ जब अरशद महविश के इस कदर करीब आ गया था। महविश की महक वो बआसानी महसूस कर सकता था। सर आप क्या कर रही है? कुछ नहीं महविश, तुम्हारी खूबसूरती देख रहा हूँ। सर मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, खुदारा दूर रहे मुझसे, कुछ नहीं होता। महविश
किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। बाहर का मौसम आज बहुत हैयतनाक है, शदीद बारिश है और बिजली कड़क चमक रही है। माहौल को मज़ीद हैबियतनाक बना रहा था। प्लीज़ मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। महविश अपनी कलाई को छुड़ाते हुए शदीद हैरानगी के आलम में थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरशद की गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि महविश छुड़ा ना पाई। अरशद ने महविश को बेड पर धक्का दे दिया और महविश अरशद का वज़न बर्दाश्त न कर पाई। अरशद के मुंह से शदीद गंदी बदबू आ रही थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि अरशद नशे में है। होश आने पर महविश को रोता हुआ पाया। सॉरी महविश, जो भी हुआ नशे में हुआ, दूर रहे मुझसे। आपने मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। मैंने आपको बड़े भाई का दर्जा दिया था। महविश बलक बलक कर रो रही थी। चुप करो, बकवास बंद करो, वरना जो हुआ है इन सबको बता दूंगा। लोग यही समझेंगे कि तुमने पैसे के लिए सब कुछ किया है। इज़्ज़त तुम्हारी ही ख़राब होगी। ये लो कुछ पैसे लो और अपनी वालदा का इलाज करो। अरशद महविश के पास पैसों की गड्डी फेंकते हुए बाथरूम चला गया। और हाँ, अगर किसी से भी जिक्र किया तो तुम्हारा सारा ख़ानदान तबाह कर दूंगा। सब कुछ कर सकता हूँ। अरशद को अपने पैसे पर बहुत ही घमंड था। वो सोचता था कि दुनिया की हर चीज़ ख़रीद सकता हूँ। नगीना, मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम ज़रा बशीर के पास जाओ और मीटिंग कर लो। मुझे ज़रा सा काम है। मगर अरशद, वो शख्स नहायत घटिया है, आपको नहीं पता वो कैसा है। अच्छा, मैं जाती हूँ, मगर जाना किधर है वो तुम्हें ड्राइवर बता देगा। अरशद नगीना को बात समझाने वाले अंदाज में नगीना से बात कर रहा था। कार एक वीरान फैक्ट्री में रुकी। नगीना कार से उतरी और इसके आसपास निगाह दौड़ाने लगी। ये कैसी जगह है? इधर ना बंदा है और ना बंदे की ज़ात। मैं कॉल करती हूँ अरशद को। नगीना दिल ही दिल में खौफ का शिकार थी। कॉल करने पर पता लगा कि इधर सर्विस ही नहीं है। ऑफिस में दाखिल होते ही सामने बशीर को बारजमान पाया। आए मैडम, आप ही का इंतज़ार कर रहा था। नगीना की नज़रें इसे पहचान रही थी। वो मुस्कुराते हुए नगीना को इसकी निगाहों से देख रहा था, जो पहले ही मिले थे। अब आप अंदाज़ा कर रही हैं कि आप बाहर बैठे, मैं ज़रा मैडम से मीटिंग कर लूँ। नगीना के इशारे ने ड्राइवर को बाहर भेज दिया। जी बशीर साहब, कहिए, आप ऑर्डर आपको मिल गया? आप चेक दे ताकि मैं चली जाऊँ। अरे मैडम, चेक भी मिल जाएगा, पहले कुछ काफ़ी वाफ़ी ले तो ले। बशीर की आंखों में शैतानी साफ ज़ाहिर हो रही थी। नहीं बशीर साहब, काफ़ी की ज़रूरत नहीं। नगीना का दिल कर रहा था कि इसका सर फाड़ दे, मगर शोहर का ख्याल आते ही नगीना बर्दाश्त कर रही थी। ये ले, अगर आप मुझसे ताउन करेंगी तो मैं भी मज़ीद ऑर्डर भी दे सकता हूँ। बशीर मुस्कुराहट के साथ नगीना से बोला, क्या मतलब है मोहतरम? मतलब को छोड़े, यहाँ आपके और मेरे सिवा कोई नहीं है और किसी को पता नहीं लगेगा। बशीर चेक नगीना के हाथ में पकड़ाते हुए हाथ पकड़कर अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। देखिए बशीर साहब, मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत बुरा होगा आपके साथ, दूर रहे मुझसे। नगीना दो कदम पीछे हटते हुए शदीद गुस्से की हालत में थी। तुम्हारी वजह से ही तो मैंने बिजनेस किया था। तुम्हारे हस्बैंड से जब तुम्हें देखा, इसी दिन तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया। तो तुम सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं तुम्हें क्या कुछ दे सकता हूँ। छोड़ दो अरशद को। रशीद नगीना की तरफ आगे बढ़ता रहा। नगीना की पीठ दीवार से लग चुकी थी और मजीद पीछे ना जा सकती थी। बकवास बंद करो, मैं चीख कर सबको इकट्ठा कर लूंगी और अरशद को तुम्हारी असलियत का पता बता दूंगी। अरशद मुझे क्या कहेगा? अरशद ने मुझसे बहुत ज़्यादा उधार उठा रखा है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रशीद की शैतानियत उरूज पर पहुंच चुकी थी। रशीद, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। नगीना अब रोने लगी थी। रशीद ने नगीना की कमर को थामते ही नगीना ने जोरदार थप्पड़ गाल पर रसीद करते हुए इसके 14 तपक रोशन कर दिए और इसे धक्का दिया और बाहर निकल गई। अब तुम्हें मैं बताऊंगी कि रशीद बदले की आग में जलता हुआ अपने गाल पर हाथ रखते हुए निहायत गुस्से में लाल पीला था। अरशद, इसने मुझे छूने की कोशिश की थी। नगीना अरशद से कॉल पर बात करते हुए रो रही थी। इसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बलक बलक कर रोते हुए सारा किस्सा अरशद को बताने लगी। इसकी ये मजाल कि इसने तुमसे ऐसी हरकत करने की कोशिश की है। तुम कॉल काटो, मैं करता हूँ इसका बंदोबस्त। रशीद साहब, इतनी भी क्या जल्दी थी? आपको एक दो मुलाकातें और कर लेते। तुम्हारी बीवी ने मुझे थप्पड़ मारा है, अब तुम देखना कि तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। रशीद इंतकामी अंदाज में अरशद से शदीद तल्ख लहजे में बात करता रहा। मुझे मेरे 6 बिलियन 2 दिन के अंदर वापस कर दो, वरना अपनी बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद होगे। रशीद अरशद को धमकी दे रहा था। रशीद साहब, सॉरी सर, वो ना समझ आपके बारे में नहीं जानती थी। आप बकवास बंद करो और मेरे पैसे 2 दिन के अंदर वापस कर दो। रशीद गरजता हुआ अरशद से शदीद नाराजगी का इजहार कर रहा था। नगीना, जल्दी से आज ही घर आ जाओ, बहुत ज़रूरी काम है। क्या हुआ अरशद? खैरियत है? तुम जितना कहो इतना करो, फजूल की बहस मत करो मुझसे। अरशद नाराजगी के इजहार करते हुए नगीना को डांट रहा था। अच्छा, आ जाती हूँ अम्मी, मुझे जाना होगा, ज़रूरी काम है। अरशद ने बुलाया है। क्यों बेटा,
अचानक जारी नगीना की वालदा ने फिक्रमंदी से कहा, जी अम्मी सब ठीक है। अच्छा बेटा, अल्लाह पाक के हवाले। नगीना की माँ इसे दुआ में रुखसत करने लगी। अरशद, नगीना तुमसे रशीद साहब से बदतमीज़ी क्यों की है? तुम्हें पता है ना कि इनके हम पे कितने एहसानात हैं। अब वो मुझे 6 मिलियन वापस मांग रहे हैं। क्यों? क्या तुमने ऐसा किया? अरशद तल्ख लहजे में नगीना से बात कर रहा था। अरशद, क्या मतलब है आपका? आपको नहीं पता वो मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था? बताओ आपको। इसने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की। नगीना अरशद को बात बताते हुए रो पड़ी। देखो नगीना, बिजनेस में हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। अगर वो तुमसे बात करना चाहता था तो तुम कर लेती। क्या मतलब? अरशद नगीना से हैरानगी के आलम में अरशद को भी फटी फटी निगाहों से देख रही थी। कोई मतलब नहीं, इस वक्त मेरा दिमाग ख़राब है। दफ़ा हो जाओ। क्या क्या आपने मुझे दफ़ा हो जाओ? नगीना अरशद का लफ्ज़ दोहराते हुए गुस्से में बात कर रही थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम अरशद हो। आप मुझसे किस तरह की बात कर रहे हो? जवाब दे मुझे अरशद। नगीना अरशद का गिरबान पकड़ते हुए तहस में आते हुई थी। मैं आपकी बीवी हूँ, कोई रखेल तो नहीं जो मर्दों को खुश करूँ। आपने जो कहा, मेरा दिमाग फटकर बाहर आ जाएगा। कौन अपनी बीवी से कहता है कि गैर महरम के पास जाओ और बात मानो? नगीना, मेरा दिमाग इससे पहले कि मज़ीद ख़राब हो, अपनी शक्ल लेकर यहाँ से चली जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। अरशद ने नगीना को बाजू से पकड़ते हुए बेड पर दिखा दिया और बाहर चला गया। नगीना की रातें अरशद के लहजे की वजह से हराम हो चुकी थी। बार बार खिड़की घड़ी की ठक ठक सुन रही थी कि दरवाजे की बेल की वजह से नगीना की तवज्जो दरवाजे की जानिब हुई और दरवाज़ा खोलने बाहर चली गई। तुम सोई नहीं अभी तक? अरशद ने दाखिल होते ही सवाल किया। जी सो जाऊंगी। नगीना नागवारी के अंदाज में अरशद से बात की। अभी तो गुस्से में हूँ। नगीना बिना जवाब दिए ही कमरे में चली गई। खाना लग गया है, खाना खा ले। नहीं, मैं खा कर आया हूँ, तुम खा लो। नगीना माथे पर बल चढ़ाकर खाना वापस रखने चली गई। वापसी कमरे में आई तो अरशद को अजीब से पाया। अरशद की आंखों में लाल सुर्ख थी और बोलने पर गंदी बदबू महसूस हो रही थी। अरशद हैरात से क्या हुआ? नगीना परेशानी में अब अरशद के माथे पर हाथ लगाने के बाद पता लगा कि इसने शराब पी रखी है। सुनो, मेरे पास आओ। अरशद ने मदहोशी में नगीना को पास बुलाया। नहीं, तुमने शराब पी है और यह हराम चीज़ है। नहीं, नहीं आऊँगी। मैंने कहा ना, पास आओ। अरशद चिल्लाते हुए फिर से बोला, नहीं आना मुझे तुमसे। गलत इंसान हो इंसान। नगीना आंखों में आंसू भर आए। और मेरी बकवास नहीं सुन रही हो? पास आओ। इस बार अरशद ने गरज वाली आवाज़ में बोला, नहीं आऊँगी। अभी अम्मी को जाकर बताती हूँ। नगीना खड़ी हुई और बाहर जाने लगी। अरशद ने नगीना को बालों से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, तुमने अभी मेरी मोहब्बत देखी है, मेरा गुस्सा नहीं। तुम खुद को बहुत हूर परी समझती हो ना? जानती हो तुम जैसी कितनी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं? अरशद, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। नगीना दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त न कर पा रही। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है, तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अरशद मुसलसल नगीना की ये आग बगोला हो रहा था। खुदा का वास्ता है, छोड़ दो मुझे, प्लीज़ प्लीज़। क्या हो गया तुम्हें? नगीना ज़ारों के तार रोने लगी। अरशद नगीना को घसीटता हुआ बाहर ले गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। नगीना, तुम किधर फंस गई हो? ये वही अरशद है, इतनी केयरिंग करने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला। नहीं नहीं, ये वो नहीं है। नगीना खुद से ही सवाल जवाब करती रही। सोफ़ा पर बैठी थी। सुबह के 7 बजे थे मगर अब तक नगीना के आंसू खुश नहीं हो पाए थे। अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। महविश आती ही होगी, वो आपका ख्याल दूसरों से अच्छा रखती होगी। अरशद तंजिया लहजे में वालदा को दरवाज़ा के बाहर से ही बात कर रहा था। नगीना सब सुन रही थी। इसने भी किसी बात का जवाब ना दिया और उठकर कमरे में चली गई। हाँ अरशद, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है, मेरे पैसे दो। बशीर अरशद के ऑफिस जा पहुंचा। अगर शाम तक मेरे पैसे मुझे ना मिले तो कानूनी कार्रवाई करूंगा। बशीर कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं था। बशीर साहब, बैठकर बात करते हैं ना? मुझे अब कोई बात नहीं सुननी, शाम तक पैसे मिल जाने चाहिए। क्या हुआ मैडम, खैरियत है ना? महविश कमरे की सफाई करने लगी तो नगीना की ध्यान करने पर मालूम हुआ कि इसकी आंखें लाल सुर्ख हैं। आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, दवा लाती हूँ। महविश परेशान होते हुए नगीना के लिए दवा के लिए बाहर जाने लगी। महविश ने, मुझे जो बुखार है वो ठीक नहीं हो सकता है, तुम रहने दो। क्या मतलब? महविश तशवीश से लहजे में नगीना के लिए फिक्रमंद थी। कुछ नहीं, तुम जाओ काम करो, नहीं तो मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। महविश बाजिद थी, मैं दवा लेकर आती हूँ। इतना कहकर महविश बाहर चली गई और नगीना को दवा देने लगी। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नगीना ने महविश से सवाल किया। नहीं मैडम, अम्मी अबू कहते हैं अगर शादी कर लोगी तो वो लोग अकेले हो जाएंगे, और वैसे भी मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। महविश टेबल पर ग्लास रखते हुए बोली।
ये तो बहुत अच्छी बात है नगीना, ठीक है मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। नगीना इसे हौसला देते हुए कहा, सच्ची बाजी ठीक है, मैं भी आपकी तरह बनना चाहूँगी। नहीं मेरी तरह ना बनना, नगीना ने कुछ सोचते हुए दिल ही दिल में सोच रही थी। जो इसके साथ हो रहा है, क्या मतलब बाजी आपकी तरह क्यों नहीं? बाजी ऐसे एक आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। महविश नगीना के मोबाइल साइड पर रखते हुए, क्या बात है बाजी? वो आपसे लड़ते तो नहीं हैं? कौन किसकी बात कर रही हो? नगीना महविश को देखते हुए सवालिया नज़रों से देख कर पूछ रही थी। सर अर्शित की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो हज़ारों में एक है। नगीना की हज़ारों में एक है। नगीना की गाल पर से आंसू से बहुत ज़्यादा बरस रहे थे। तुम अब जाओ, मुझे आराम करने दो। वो अपने आंसू को छुपाते हुए बोली। जी बाजी मैं जा रही हूँ। सर जी महविश घबराती हुई अर्शित के कमरे में चली गई। अर्शित अभी काम से आया था। क्या हुआ सर? महविश ने अर्शित को दरवाजे को दस्तक दी। इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? अर्शित दरवाजे खोलते हुए महविश को हैरानगी के आलम में पूछने लगा। सर अम्मा, अम्मा को क्या हुआ? अम्मा को वो बोल नहीं रही है, पा रही है, सांस भी उखड़ रहा है। अरशद फौरन कमरे से बाहर आया और साथ ही नगीना भी दौड़ती हुई चली आई। अम्मी जान को क्या हुआ? अम्मी जान कुछ बोली। अरशद शदीद परेशानी के हाल में था। अपनी वालदा से पूछने लगा, एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। नगीना अरशद को तलकीन करते हुए बोली, पता नहीं वो आती है या नहीं। नगीना तुम अम्मी क्यों थामो, और महविश तुम भी चलो अस्पताल। अरशद ने गाड़ी की चाबी उठाई और चल दिया। अम्मी कुछ बोली? अम्मी जान, नगीना ज़ुबैदा को बार बार बुला रही थी मगर ज़ुबैदा बोल नहीं पा रही थी। कोई डॉक्टर, मरीज़ की हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ देखें। सर आप तशरीफ़ रखें, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। नर्स ने अरशद को हौसला देते हुए कहा। नर्स मरीज़ को इमरजेंसी में शिफ्ट कर रही है, जल्दी ही। डॉक्टर नर्स को इशारा में कहता है कि इमरजेंसी में चलो। नगीना और महविश दुआएं करने लगी। नगीना तुम दोनों कुछ खा लो, सुबह का वक्त हो गया। अरशद हाथ में दवाइयों का शॉपर हाथ में पकड़े पास खड़ा हुआ था। अरशद की आंखों में आज तक इसने ने आंसू कभी नहीं देखे थे। अरशद क्या हुआ? हौसला करे। महविश अरशद के पास जाकर खड़ी हुई। आप परेशान न हो, ना उम्मीद ना हो। अरशद नगीना के सर पर अपने सीने से लगाता हुआ थपकी देने लगा। डॉक्टर साहब 6 घंटे गुजर चुके हैं, अम्मी का क्या हाल है? अरशद इनका बीपी बहुत हाई है और शुगर लेवल भी हाई है। दमा कब से है? 1 साल से है, इलाज चल रहा है। अरशद डॉक्टर को वजाहत करने लगा। हर हाल में आप दुआ करें। डॉक्टर अरशद के कंधे को थपथपाते हुए आगे चल दिया। आप मिल सकते हैं अब अपने मरीज से वार्ड में शिफ्ट करने के बाद। अम्मी जान कैसी है आप? अरशद ज़ुबैदा के सराहने खड़ा हो गया। माँ हाथ थामते हुए पूछ रही थी। ज़ुबैदा किस ज़ुबैदा? बस आंखें खुली थी, अभी वो बोल नहीं पा रही थी। नगीना ज़ुबैदा के पाँव की जाने बैठी थी जबकि महवी दूसरी साइड पर खड़ी पानी पिलाने पानी पिलाने लगी थी। ज़ुबैदा बस उंगली हिला रही थी। आज ज़ुबैदा को दाखिल हुए तीसरा दिन था। अब तक ज़ुबैदा इसी हालत में थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद नर्स को इशारा से बुलाते हुए कहा कि मरीज़ की हालत संभल नहीं पा रही है, तुम डॉक्टर अमजद को कॉल करो और बुलाओ। जी सर जी मैं बुलाती हूँ। नर्स वार्ड से बाहर चली गई। डॉक्टर साहब मरीज़ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, अब क्या करना चाहिए? हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, सारे टेस्ट तो क्लियर है फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब मैं डिस्कस कर रही हूँ। बाहर से नर्स चिल्लाती हुई अंदा अंदाज में अंदर आई। मरीज़ की हालत फिर से ख़राब हो गई है, चले आप बाहर चले। डॉक्टर ने अरशद की सारी फैमिली को बाहर भेज दिया और पंप करने लगा मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। ज़ुबैदा खालिक हकीकी को जा मिली थी। डॉक्टर बाहर अम्मास को उतारते हुए अरशद को हौसला देते हुए बोला, सब्र रखो। क्या मतलब डॉक्टर साहब? सॉरी हम बचा नहीं पाए। इतना सुनकर अरशद और सब रोते हुए वार्ड से चले गए। अरशद अब शदीद रंज में था। कुछ देर बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अरशद वालदा को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। एक दिन सब ने ही जाना है। जी बशीर साहब बस अल्लाह की मर्ज़ी। लगभग 15 दिन के बाद बशीर ने अरशद को कॉल की। अरशद साहब जो होना था हो गया, अब मेहरबानी करके मेरा पैसा लौटा दे। और कॉल काट दी। अब अरशद पे कड़ा इम्तिहान था। अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अरशद ने बशीर के पैसे देने के लिए अपना दूसरा मकान सेल कर दिया था। बशीर को पैसे देने अब न कोई नया ऑर्डर आ रहा था और न ही अब किसी मार्केट में अरशद का माल डिलीवर हो रहा था। सर आप माल किस तरह ले लें? हम एक तो आपकी कंपनी को खसारा जा रहा है और माल भी वक्त पर नहीं पहुंच पाता। सॉरी सर हम
किसी और से एग्रीमेंट कर लिया है। अर्शिद जो अपने मुलाजमीन को मार्केट के आर्डर लेने भेजा करता था, अब खुद जाने पर भी इसकी कंपनी का माल भी कोई नहीं ले रहा था। बशीर इस कदर अर्शिद को गंदा कर दिया था कि मार्केट में अर्शिद की कोई वैल्यू बाकी न रह गई थी। मार्केट में अर्शिद ने इतना लोन ले लिया था कि अब चुकाना मुश्किल हो गया था। अर्शिद शदीद मायूसी का शिकार हो चुका था। अब इसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आता था। बचा कुचा रुपया भी अर्शिद ने लगा दिया था, मगर कोई फायदा हासिल ना हुआ। अर्शिद, मुझे नौकरी की इजाज़त दे दे, मैं कुछ करना चाहती हूँ। अब अर्शिद की सिर्फ एक ही फैक्ट्री चल रही थी, मगर बात मार्केट की थी कि कोई भी इनका ब्रांड लेने को तैयार नहीं था। अर्शिद ने भी वो कोठी बेचकर अपनी फैक्ट्री को बचा लिया, जो कि जिस पर पहले 24 घंटे काम हुआ करता था। आज वो वक्त था कि दिन में सिर्फ 2 घंटे भी काम नहीं होता था। अर्शिद नगीना की बात सुनकर खामोश था। इससे कोई जवाब दिए बगैर ही बाहर चला गया। अब नगीना और अर्शिद का झगड़ा मामूल का काम बन गया था। नगीना ने फिर एक फैसला ले लिया। अर्शिद, मैं तुम्हारे साथ मजीद वक्त नहीं गुजारना चाहती, तंग आ गई हूँ रोज़ रोज़ की गड़गड़ से। मुझे अब तुमसे आज़ादी चाहिए। हेलो मिस्टर अर्शिद, क्या हाल है? अब नगीना ने अपने मोबाइल आने वाले मैसेजेस को देखते हुए जवाब जानने की कोशिश की। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी चाहने वाली हूँ। मैंने सोचा है कि आपसे एक मीटिंग कर लूँ। क्या मतलब, कैसी मीटिंग? आप आए तो सही नगीना, पहले आप बताएंगी तो आऊँगी ना। आपकी तारीफ में जो भी हूँ, मिलने के बाद बता दूंगी। दूसरी साइड से जिस एड्रेस पे नगीना को पहुँचना था वो दर्ज था। अर्शिद बेयारो मददगार दर दर की ठोकरें खाने लगा। अर्शिद बिजनेस में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। इसी अवस्था में अर्शिद को एक चिट्ठी मौसूल हुई, जिसको पढ़कर अर्शिद के होश उड़ गए थे। पर्ची पर 1.5 करोड़ की डिमांड की गई थी। अर्शिद मजीद मुश्किलात में घिर चुका था। अब चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। नगीना शाम ढलते ही बताई कि एड्रेस पर पहुंच गई थी। जिसमें मुहतरमा पहले ये बताई कि मेरा नंबर किधर से लिया और मुझे बुलाने का क्या मकसद था। नगीना साहिबा, मकसद तो अभी पूरा होना बाकी है। तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। इनमें से एक मैं हूँ। मेरे साथ भी इसने शादी के ख्वाब सजाए थे और मेरा नाम अरीश है। वो मेरे जज्बात से खेल रहा था। उसने मुझे कई बार इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। नगीना ये सब सुनकर शदीद हैरान हो रही थी। अर्शिद, ऐसा भी है? अर्शिद की असलियत इसके सामने आई थी। इसका दिमाग सुन होने जा रहा था, सुनने से कासिर हो जा रहा था। बीबी, तुम होश में तो हो? नगीना ने कुछ तल्ख लहजे में बात करने लगी। हाँ, अब मैं होश में हूँ, पहले नहीं थी। और एक और बात, वो बशीर बशीर जो है ना, वो मेरा हस्बैंड है। जो कुछ अर्शद ने मेरे साथ किया था, वही कुछ वो तुम्हारे साथ होने लगा था, मगर तुम किस्मत वाली हो, बच गई थी। खैर, मैंने इसे तबाह करना था और बस कर दिया। अभी आगे देखो होता है क्या। औरत जब इंतकाम पर आ जाए तो नस्लें बिगाड़ देती है, और वैसा ही इंतकाम अब अरीश ले रही थी। अर्शिद, ये अरीश कौन है? जब अर्शिद ने अरीश का नाम सुना तो हक्का बक्का रह गया। कौन 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 अरीश? अर्शिद बकलाते हुए बोला, वही अरीश जिसको तुमने मेरी तरह मुझसे पहले इस्तेमाल किया था। मुझसे नहीं पता, मैं नहीं जानता। अर्शिद नजरें चुराता हुआ नगीना से बात कर रहा था। बस बहुत हो गया अर्शिद, मुझे कभी पहले पता होता है कि तुमसे शादी तो दूर, तुमसे मिलने की गलती भी ना करती थी। क्या सोचता क्या सोचा था मैंने, मगर तुम ऐसे घटिया इंसान निकलोगी। नगीना रो पड़ी। नगीना, मेरी बात तो सुनो। वो जो भी था एक हादसा था। अर्शिद नगीना के कंधे पर सर रखते हुए बोला, दूर हो गंदे इंसान, मैं सब जान चुकी हूँ। अब तुम्हें देखना मैं क्या करती हूँ। नगीना ने अब पैकिंग करने लगी। रुक जाओ, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, प्लीज़ रुक जाओ। इसका फैसला कोर्ट नहीं करेगी मिस्टर अर्शिद। नगीना धमकी आमेज लहजे में बोलती हुई अपने मैके चली गई। अर्शिद को भत्ते की दूसरी और आखिरी पर्ची मौसूल हो चुकी थी। अब अर्शिद बिल्कुल बेसरा हो चुका था। इसने अपना सब कुछ अपने हाथों से ही ख़त्म कर दिया था। अब क्या ये वही अर्शिद था जो मोहल्लों में रहने का आदी न था, जो ज़मीन पे कदम न रखता था, अपनी तौहीन समझता था? आज बेयारो मददगार फुटपाथ पर शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था। इसे नगीना की वो बात याद आई कि अर्शिद फुटपाथ पर वालों का कोई आसरा नहीं होता। इसके जवाब में अर्शिद ने नगीना को कहा था कि हमें अपने से मतलब होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं है। ये वही अर्शिद था जो 5 स्टार होटलों में खाना खाता था, आज दरबार में बैठकर खा रहा है। ये वही अर्शिद था जिसको अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। सब कुछ खरीदा जा सकता था। इस पैसे ने इसकी वालदा को ना ला कर दिया। अर्शिद अपनी गाड़ी वगैरह सब कुछ बेच चुका था। बस एक फैक्ट्री ही रह गई थी, जिसमें मुलाजमीन तनख्वाह के लिए फैक्ट्री को ताला लगाए हुए एहतजाज कर रहे थे। और दूसरी वजह
भत्ते की पर्चियाँ वसूल हो रही थी। अरशद आज जितना रो रहा था शायद ही ज़िंदगी में कभी रोया हो। मोहतरम अहबाब काल इसकी आखिरी। अब अरशद बिल्कुल अकेला रह गया था। ना नगीना थी और ना ही कोई दोस्त था। एक छोटे से घर में रह रहा था जो घर इसके वालिद ने इस अपनी हयात में इसके नाम करके चल बसा था। इसके बाद अरशद कभी ना इस मकान में रहा और ना ही कभी चक्कर लगाया था, मगर अब इस मकान में रह रहा है और इसे इसी घर में ज़िंदगी बसर करने लगा था। इसने बची कुछ दौलत मुलाजमिन को देने के बाद फैक्ट्री खोलने की दरख्वास्त की और फैक्ट्री कुछ हद तक चल पड़ी। अरशद सिफर हो चुका था। अरशद का ब्रांड कोई भी ना ले रहा था। अल्लाह अल्लाह करके एक कंपनी ने ऑर्डर बुक किया और काम शुरू होते ही अरशद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कुछ परेशानी हल हो गई। बेटा, अगर अरशद ऐसा है तो छोड़ दो इसे। नगीना ने अपनी वालदा को सब कुछ बता चुकी थी। इनका सारा घर परेशानी से दो चार हो चुका था। जिस कुर्ब की हालत से नगीना गुजर रही थी शायद कि वो बताने के लिए इसके पास अल्फाज ही न थे। जब से आई थी बस माजी को याद करती रहती थी और रोती रहती थी। हर वक्त उसकी आंखें सुर्ख रहने लगी थी और सख्त बीमार पड़ गई थी। अम्मी, मैं क्या करूं, कोई फैसला नहीं कर पा रही हूँ। वो शख्स जो मुझे ज़िंदगी कहा करता था, मेरे लिए मर मिटने को तैयार था, वही शख्स मुझे मेरे नामुहर्रम के पास जाने को कहता है और कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। अम्मी, इसने मुझ पर हाथ तक उठाया है, मुझे रोज़ मारता था। नगीना रोते हुए अपनी माँ को सब कुछ बता रही थी। बेटा, अगर थाने कचहरी के चक्करों में पड़ी तो तुम्हारे वालिद की इज्जत खाक में मिल जाएगी। तुम ऐसा करो कि दूसरी शादी कर लो। नहीं अम्मी, अब शादी नहीं करूँगी, मेरा भरोसा टूट चुका है। अम्मी, भरोसा जब टूटता है ना, कि बड़े से बड़ा सबर वाला भी कहीं 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 का नहीं रहता। अम्मी, मैं क्या करूं? अब मैं मौत ही आ जाए तो ठीक है, मगर शादी मैंने हरगिज़ नहीं करूंगी और अरशद से खला ले लूंगी। नगीना के अल्फाजों से ऐसा लग रहा था जैसे इसका फैसला अटल है। अब कोई भी समझाए तो ना समझ पाएगी। अरशद ने कई बार माफ़ी मांगी, नगीना ना मानी, मगर नगीना के दिल में मोहब्बत अब भी बाकी थी। वो इसके पुराने मैसेजेस पढ़ती थी और बलक बलक कर रोती थी। इसका दिल करता था कि अरशद को माफ़ कर दे, मगर अगले ही लम्हे इसे सब कुछ याद आने लगता था। अरशद दिन में कई बार कॉल करता था। नगीना अपना नंबर बंद कर देती थी और कोई जवाब न देती थी। ये भी फिक्र लाहिक होती थी कि न जाने किस हाल में होगा, कैसा होगा। इसे देखने की तड़प और फिर खुद पे किए गए जुल्म और सितम इससे सोचने समझने की सलाहियत खो चुकी थी। बेटा, नाश्ता कर लो। अम्मी, मुझे भूख नहीं है। सुबह के वक्त नगीना की वालदा ने इसे उठाया और नाश्ते पे बुलाने लगी। बेटा, थोड़ा सा खा लो, देखो खुद की हालत से नहीं, कम से कम हमें तो सदा मत दो। बेटा, खा लो कुछ। अच्छा अम्मी, मैं आती हूँ। अब लगाए। नगीना बेड से उठी और फ्रेश होने के बाद डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। दो तीन लुकमे लेने के बाद इसे चक्कर आने लगे और दिल मथली होने पर मुंह पर हाथ रखते हुए बाथरूम भागी। नगीना की वालदा को तशवीश ने घेर लिया और वालदा का शक यकीन में बदल गया। अस्पताल जाने पर पता लगा कि नगीना माँ बनने वाली है। ऐसी सूरत हाल में मैं खुश हो जाए या क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटा, अब क्या कहती हो? अबॉर्शन करवा लो। अगर अरशद ने तलाक नहीं नहीं रखता तो नगीना की अम्मी नगीना के पास बैठी माहू गुफ्तगू थी। अरशद की कॉल आई न चाहते हुए भी कॉल उठानी पड़ी। दूसरी तरफ से अरशद के रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे माफ़ कर दो, खुदा का वास्ता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। नगीना, लौट आओ, मैं सुधर चुका हूँ। नगीना, बोलो, जवाब दो। नगीना चुपचाप बातें सुन रही थी। नगीना का दिल चाहा कि इसे इस बात को, मगर वो चाह कर भी कुछ बोल ना पा रही थी। अरशद अरशद ने दो लफ्ज़ बोले और मुंह पर हाथ रखकर माँ के गले ज़ारों के तार रोने लगी और इसी के साथ इसकी कॉल कट गई। रात की पहर घड़ी की टक टक और अरशद की तन्हाई इसे सोने न दे रही थी। एक अजीब सी घबराहट अरशद को परेशान किए जा रही थी। अरशद ने कॉल उठाते हुए मोबाइल कान पर लगाया। सर जी की आवाज़ सुनकर अरशद मुतवज्जे हो गया। क्या बात है, इतनी रात को कॉल क्यों की है? सब खैरियत तो है ना? सर, कुछ भी खैरियत नहीं है, खैर नहीं है। वो क्या हुआ? वो वो सीधा बताओ। अरशद थोड़ी तैश में आ गया। सर, वो फैक्ट्री जलकर राख हो गई है और आग लग गई है और सब के सब वर्कर्स झुलस गए हैं। आपका नंबर नहीं लग रहा था, आप जल्दी पहुँचे क्या? अरशद शदीद हैरत और रंज में मुब्तला हो गया था और घर से फौरी निकल पड़ा रक्षा करवाते हुए। चलो भाई, जल्दी से चलो। किधर जाना है भाई? वक्त बहुत हो गया है, अब नहीं जा सकता हूँ। इसका जवाब सुनकर अरशद में मज़ीद आग बगोला हो गया। ख्याल आया कि वक्त गुस्से का नहीं है भाई, खुदा का वास्ता है, चलो, बहुत बड़ा मसला हो गया है। अरे भाई, कुछ भी बताओ, जाना कहाँ है? अरशद पागलों की तरह अपनी ही फैक्ट्री का पता सोचने लगा। इसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो इधर से ही, भाई साहब, नशा किया हुआ है क्या?
जो कि अपना पता ही भूल गए। रिक्शे वाला अर्शिद को नागवार नज़रों से देखता हुआ बड़बड़ा रहा था, भाई साहब आप चलो मैं बताता हूँ। अर्शिद इस कदर कंफ्यूज हो चुका था कि इसे समझ नहीं आ रहा था कि पागलों की तरह सर खुजाते हुए 2 मिनट चुप रहने के बाद रिक्शे वाले को एड्रेस बताते हुए बोला, अच्छा इस फैक्ट्री की बात कर रहे हो जो निहायत ही घटिया इंसान है। अर्शिद को जब ये लफ्ज़ सुनने को मिला तो अपना मुंह छुपाते हुए कहने लगा, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं साहब जी, इसकी फैक्ट्री को आग लग गई है, वो बहुत बदनाम हो चुका है, अपनी ही बीवी को भी गलत करने पर मजबूर करता है। तुम क्या कहते हो इसके? मैं तो कुछ नहीं लगता हूँ, अलबत्ता हमारे मोहल्ले में एक चौकीदार इनके घर में काम करता था, इसने इसकी बेटी के साथ ही बहुत गलत किया है, बेचारी कुछ नहीं कर पाई, बहुत गरीब है। ठहरो। अर्शिद जैसे जैसे सुन रहा था वैसे वैसे मुंह छुपाने लगा। लो साहब आपका एड्रेस आ गया है, देखो इसकी बर्बादी किस तरह हो रही है। अर्शिद चुपचाप रिक्शे वाले को पैसे दिए और चल दिया। हर तरफ कहराम मच चुका था, एम्बुलेंस, आग बुझाने वाली गाड़ियों और सायरन मुसलसल बज रहे थे। अर्शद अपनी बर्बादी अपनी आंखों के सामने देख रहा था, इतना मजबूर कि चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। आंखों में आंसू थे, फैक्ट्री को बनाते वक्त के हालात इसकी नज़रों में थे और फटी फटी नज़रों से चारों तरफ देख रहा था। इसके कानों में कुछ समाज सुनाई दे रही थी, सर फैक्ट्री में तमाम लोग शहीद हो चुके हैं और मालिक का कोई अता पता नहीं चल रहा है, वो सारे मकान बेचकर न जाने किधर चला गया। कोई इन्वेस्टिगेशन अफसर शाहिद अपने बड़े अफसर से बात कर रहा था, सर यहाँ की सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी है, हमें ताज़ा दम दस्त की फौरी ज़रूरत है। और पुलिस वाले ने रिपोर्ट देकर इधर से ही चला दिया है। अर्शिद घर में वापस आया और पानी पीने के बाद खुद को जिस्म ने बेजान पाया। सुबह कब हुई इसे पता ही न चला। दरवाजे पर दस्तक हुई तो दरवाज़ा खोलने पर पुलिस वालों को सामने पाया और हथकड़ी लगवाई और चुपचाप पुलिस वैन में बैठ गया। सर ये बेल के कागजात है। 2 दिन के बाद इसने अपने कानूनी मेल के नगीना की आवाज़ समाप्त होती ही जल्दी से अपनी जगह से उठकर बाहर झांकते हुए नगीना के सामने गड़गड़ाते हुए, मुझे बचा लो, अल्लाह का नाम है, मुझे बचा लो। नगीना ये सब कुछ सुन रही थी। नगीना का भी दिल कर रहा था इसे गले लगाए कर तसल्ली दे, मगर वो ऐसा ना कर पाई। वकील के साथ आकर अर्शिद को घर से ले गई। अर्शिद, तुम्हें तुम्हारे गुरूर और तकब्बुर की सज़ा मिली है। तुमने कभी किसी गरीब का एहसास तक नहीं किया। तुम्हें अपने पैसे पर बहुत घमंड था ना? किधर है वो पैसे जिसके दम पर तुम जीतना चाहते थे? अर्शिद जैसे गूंगा बन चुका था। देख लो अब खुद ही अपने आंखों से क्या कुछ हो गया है। सब इसलिए हुआ है कि तुमने इंसान को इंसान ना समझा। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ। तुम लौट आओ मेरी ज़िंदगी में, बस लौट आओ। नगीना के कंधे पर अपना सर रख कर निदामत के आंसू बहाता हुआ अर्शिद था जो आज सब कुछ गवा बैठा था। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अर्शिद, इसके बाद अगर कोई भी हरकत की ना तो गला दबा दूंगी। और ये पकड़ो, मुन्नी को बाजार ले जाओ। नगीना अपना बच्चा इसे थमाते हुए बोली। अब सारा काम नगीना के हाथ में था और नगीना अब 2 फैक्ट्रियों की मालिक थी। जो पैसे नगीना ने जोड़ जोड़ कर रखा था वही पैसा इसने कारोबार में लगा दिया था और एक शानदार कोठी भी खरीद ली थी। दोस्तों, ये एक हकीकी कहानी है जिसमें बहुत से कम और ख़याली सीन डाले हैं। आजकल हमारे माशरे में मोहब्बत तो हर कोई इंसान आसानी से कर लेता है, मगर निभाना मुश्किल होता है। अगर नगीना अर्शिद को पहले जान जाती, अपना मुस्तकबिल कभी ऐसा ना बना पाती। नगीना ने हर जुल्म बर्दाश्त किया मगर हिम्मत ना हारी। नगीना जैसी लड़कियां हमारे माशरे में बहुत है जो बिना जाने हर एक पर एतमाद करके मविश और अरीश की तरह अपनी इज्जत गंवा देती हैं। अक्सर देखा गया है कि लड़कियां एक बार धोखा खाने के बाद किसी पर भी भरोसा नहीं करती। अगर कर भी ले तो दिल से नहीं करती। इसमें सारा कसूर मर्द का होता है, हरगिज़ नहीं। अगर औरत ना चाहे तो मर्द औरत को छू तक नहीं सकता और ना ही इसके करीब आ सकता है। मर्द को इशारा मिलता है तो वो औरत के करीब आ जाता है। और अंधे को 2 आंखें ही चाहिए होती है। हर मर्द खराब नहीं होता, हर औरत खराब और ना ही हर औरत खराब होती है। बस बात इतनी सी है कि एक बार धोखा मिलने के बाद मर्द दूसरी औरत को और औरत दूसरे मर्द को धोखा देती है। ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी।